Okay, recording in progress. So what mainly changes in both the cases is in acutes, we mostly have to deal with the issues of few days. The patient can narrate very well, and we can many times just prescribe on the ailments only. Ailments is one of the most important aspect of the case taking. Also, what helps most of the times is the LSMC in acutes. At times, it also happens that there are mentals in the play, and we have to focus on the mentals too. Like we saw a case of COVID that time. So we have to give due importance to what patient is giving importance to, be it the physical complaint, be it the generals or the dreams or emotions or his or her worry or stress or sleep, okay, his general energy. We don't need to do anything fancy, but just be there and trying to understand what is going on there in front of us. Okay, तो पेशेंट अगर कुछ आके हमने पूछा कुछ भी and patient starts speaking, the only question that should be in your mind is what is he trying to tell me, not the symptoms. Symptoms बोलेगा, symptoms मिल जाएंगे, बट उसका फोकस कहाँ जा रहा है, क्या चीज को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है. That will be your first thing to consider in totality, and you can ask more on that. So that's the thing. And also one question I told repeatedly to ask, the first question, open-ended questions are most important, and the first question should be, tell me, bolo kya hota hai. Not asking about the complaints, not asking about the troubles he is having, but just telling him, tell me. And he will tell about anything in the world which is important to him or her. Okay, and वो हम आज ज्यादा देखेंगे because we are going to see chronics. अभी before starting the cases, tell me by your side, what are the difficulties that can arise in chronic case, or which you had faced ever in the case taking or anything. I need 1, 2, 3 answers will suffice. Tell me, what are the difficulties in taking chronic cases? Patient not open up first time to tell everything. Right. So the rapport building is important and difficult aspect. What else? कई बार बोलते हैं ना हम लोग, when we used to study or when we assist the senior doctors, हाँ यही, पेशेंट कुछ बोल नहीं रहा है, अपने आगे नहीं बोलता है, वो सीनियर डॉक्टर के पास जाके बोलता है, ऐसे कैसे होता है? How are they finding some medicine and we are not having enough symptoms when we elicit the case? So there's a beautiful video on YouTube on case taking, making up totality. Okay. So there's a beautiful video on YouTube on case taking by Dr. Manoj Patel. You must watch it. Dr. Manoj Patel is a faculty at ML Dhavle Institute at Palghar, and he had taken a lecture at the Other Song Academy in Mumbai on case taking, and he tells very simply, समझो, अगर आप बाल कटाने जा रहे हो, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो मॉल में, शॉप्स पे, आप कोई चीज लेके आओगे नहीं आओगे? आप बाल कटा के आओगे कि नहीं आओगे? सिंपल थिंग. यस, हेलो, Yes, sir. हाँ.
तो सर वही बोलते हैं, पेशेंट मेडिसिन लेने आ रहा है, रिलीफ करने के लिए आ रहा है तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, उसी के लिए तो आया है। द डिफिकल्टी इज ट्रेनिंग द पेशेंट्स एट टाइम्स, बिकॉज उनको आदत नहीं होती है होम्योपैथिक केस टेकिंग की, मेंटल्स बोलने की, इतने डिटेल में एलएसएमसी बताने की, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं है ना। समझो अभी, we've all seen the movie तारे जमीन पर, राइट? तो Yes. पूरा मूवी में जो उसका हाल होता है, टिल आमिर खान इंटरवीन्स, तो तब तक जाके उसका सिचुएशन जो होता है कि आमिर खान को कितना एफर्ट करना पड़ता है, तब जाके ही स्टार्ट्स ओपनिंग अप। तो आज तक उसको आदत ही नहीं थी कि कोई उसको पूछे, बच्चा कैसा है तू। तो पेशेंट को कभी किसी ने पूछा ही नहीं है, बताओ इसके बारे में, तो कैसे बोलेगा, उसको नहीं आदत है ना? बहुत सिंपल चीज है, तो अपने को ट्रेन करना है। सो मेनी टाइम्स स्पेशली इन क्रोनिक केसेस वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट व्हाइल टेकिंग द केस, कि हाँ हाँ, अगर पेशेंट सही नहीं भी बोल रहा है तो हाँ बहुत अच्छा जा रहे हो, बोलो ना, टेल मी मोर अबाउट दिस। एंड ऑल्सो हैव टू गाइड देम, मनूवर देम, कि हाँ मुझे ये डिटेल चाहिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। मैं आई वेरी ऑफन टेल माई पेशेंट्स कि मैं ये जो पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये है। आई एट टाइम्स टेल देम दैट आई हैव हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन फॉर दिस हेडेक यू आर हैविंग। तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा अभी ये 400 मेडिसिन में से? तो मैं 5 पेशेंट अलग अलग हेडेक के देखूंगा, मैं 5 अलग मेडिसिन दूंगा। होम्योपैथी ऐसे काम करता है, आपकी प्रकृति के ऊपर काम करता है, आपको जो स्ट्रेस लगता है, आपका जो नेचर है उसके ऊपर जाके काम करता है। तो आई हैव टू आस्क यू क्वेश्चंस, और पेशेंट समझते भी है। अगर नहीं समझ रहा है और कुछ और बोल रहा है तो अगेन दैट विल आल्सो गिव यू हिंट टू अ सिम्टम। और एक डिफिकल्टी जो बहुत बहुत कॉमन है, मेंटल सिम्टम लेने की। आई थिंक दैट इज कॉमन टू अस ऑल, तो हम देखेंगे आज। और एक चीज, वी आर वेरी मच ऑड बाय मेंटल सिम्टम्स, कि मेंटल सिम्टम मिला मतलब खत्म, तो वो भी हम देखेंगे। यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. Oh, Yeah. so I'll share it. So we directly jump into a case. Okay, this is a case of 66-year-old male, and he came with folliculitis. I already shared the images on my social media, so it's not new. अभी ये फोटो मैंने खुद ली थी, दिस इज बिफोर, एंड ये उसने बाद में घर से भेजी है, सो दे आर नॉट वेरी क्लियर, बट ही इज बेटर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, बोलो, टेल मी। सो ही स्टार्ट्स, फर्स्ट आई हैव इंटेंस itching, then it swells, then there are dots like this, red dots, then it gets dry, once it happened on legs, then back of thigh, अभी वो upper limbs पे है। ओके, सो अभी इतने से क्या मालूम पड़ता है अपने को, that patient is talking about his disease. Okay, so we have to ask on his disease. Okay, tell me what happens exactly, उसके बारे में बताओ। नॉर्मल ह्यूमन के साथ कैसा कन्वर्स करोगे उसके बारे में जानना समझना है तो वैसे ही करना है, और कुछ फैंसी नहीं करना है होम्योपैथिक केस टेकिंग में। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग एंड हिज सफरिंग। टेल मी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। Again, why first intense itching, it is unbearable. I have to wake up at night. Aloe vera cream helps. And then after itching, this red spots appear. And it generally resolves around 10-15 in 10-15 days by itself. He used to take homeopathic treatment by another doctor. He accidentally died in COVID, I think. So he came to me. हाँ, तो वो डॉक्टर देते थे दवाई उसको, 15 दिन महीना एक दवाई की उसने, फिर उसको 1 साल आराम लगता था।
फिर वापस उसको तकलीफ आता, वापस वो डॉक्टर के पास जाता, वापस 15 दिन महीना दवाई की, वापस वो ठीक हो जाता महीने 1 साल के लिए। तो he says I think it comes in summer and monsoon, not in winter, but इस बार वो विंटर में भी हुआ है। फरवरी में हुआ था और अभी जुलाई अगस्त में मॉनसून में। ओके, अभी ये सब हो गया। उसने बोला कि इचिंग है अनबेरेबल, तो अपने को एक सिम्टम मिला है, तो वी गो इन द LSMC ऑफ इट। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन फालतू है। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इचिंग कब ज्यादा होता है, उसने आंसर किया नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, विल परसिस्ट। ओके, ये भी मैंने लास्ट टाइम बोला था। यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर? हेलो? Yes, sir. हाँ, सो वी नो व्हाट वी वांट इन द केस। ओके, फर्स्ट हमने डिजीज समझ लिया उसका, नाउ वी वांट द सिम्टम। सो हमने पूछा इचिंग के बारे में, मोडालिटी पूछ रहे हैं, समझ रहे हो ना? अभी वो नहीं बोल रहा है तो हम वापस पूछेंगे उसको, छोड़ना नहीं है। हाँ, व्हेन इज द इचिंग द मोस्ट? ओके, एट नाइट। उसने पहले भी बोला नाइट में होता है, लेकिन नहीं ले लें का ऐसा, ठीक है। विल आस्क डीपर कि नाइट में एग्जैक्टली कब, ये मालूम पड़ना चाहिए। सो आफ्टर आई स्लीप, आफ्टर आई सॉरी, हाँ, आफ्टर आई स्लीप आफ्टर बाथिंग, ऑल्सो इन मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग, विद इन आवर, नॉट कंफर्म दैट इट्स डे और नाइट। तो किसी के टाइम पे भी होता है, सुबह रात में, बट ये है एक कि रात में जब वो सोने से पहले नहाने जाता है, तो आफ्टर बाथिंग इट इच द मोस्ट। ओके, दैट इज वेरी क्लियर। और वो बात की बात कर रहा है, हॉट तो आई कांट जस्ट टॉलरेट, शावर टू आई हैव टू टेक कोल्ड ओनली, इफ इट्स हॉट इट एग्रावेट्स, अनदर मोडालिटी कोल्ड वाटर फील्स बेटर। हाँ, इतने से ही इफ यू गिव द मेडिसिन, योर मेडिसिन विल बी करेक्ट। ओके, बट बिकॉज क्रोनिक है, आई टेक द होल केस एंड देन प्रिस्क्राइब। ओके, अभी मोडालिटी सारा मिल गया, अभी क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। एनी अदर ट्रबल? अभी ये देखो, मैंने पूरा केस नहीं लिखा है, हाँ, कुछ फालतू की 2-4 लाइन बोली होगी, वो मैंने कट डाउन की है। एनी अदर ट्रबल? नथिंग एल्स, डायबिटीज है, हाइपोथायरॉइड है, हाइपरटेंशन। ओके, अभी एलिमेंट जानेंगे। हाउ डिड इट स्टार्ट? नो आइडिया। It just started like this 5-6 years back and it went on increasing. And it increases after scratching. मतलब क्या, स्क्रैचिंग रिलीफ नहीं कर रहा है, हाँ, ऊपर से एग्रावेट कर रहा है। तो ये रूब्रिक सारे ले सकते हो, इचिंग, स्क्रैचिंग, एमेलियोरेट, डज नॉट, स्क्रैचिंग, एग्रावेट आफ्टर, एंड आई जस्ट हैव टू स्क्रैच। ओके, अभी क्योंकि उसने बोला है अपना ये सब खत्म हो गया, टेल मी अबाउट द अदर इलनेसेस यू हैड इन पास्ट। तो उसने सारा मेंशन किया। फरवरी में कोई स्पाइन सर्जरी हुआ था, उसके बाद वो ही कुडंट स्टैंड। ओके, ही हैड सम सेंसरी न्यूरल सिम्टम्स, possibly he is having left-sided sciatica, or he had left-sided sciatica, couldn't stand that time, he has to sit only, tingling on legs, gradually comes on arms to waist to toe. Okay, ये पूरा tingling ऐसे जाता है। Then he had cholecystectomy 13 years back, और उसने अभी ये सारी उसकी मेडिसिन चालू है। ओके, नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से ले रहे हैं, नथिंग न्यू, कोई फैंसी चीज नहीं। फादर हैड हाइपरटेंशन, मदर हैव हाइपरटेंशन एंड मासी हैव ब्रेन ट्यूमर। ओके, खाने के बारे में बताओ, एपेटाइट गुड, कांट रिमेन हंग्री, और he gets hypoglycemic, so he feels trembling, it desires sweets and milk. अच्छा, ये one thing, always try to put intensity to your symptoms, even sensation में, modalities में डाल सकते हो, but specifically in physical generals try to do it. Okay, क्योंकि many time especially in chronic cases पेशेंट को पूछोगे क्या पसंद आता है, तो पेशेंट 4-5-7-10 चीजें बोलेगा, सब पसंद आता है हमें, तो घर का दाल चावल सब्जी रोटी सब पसंद है, तो क्या करेंगे? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव रूब्रिक ऑफ सब्जी रोटी दाल चावल इन रेपर्टरी, तो अभी क्या करना है? ओके,
तो कैसे क्वेश्चन करना है, अगेन ये एक मैं बीच में बता दूं आपको, कभी भी आपको मोडालिटी पूछना है, फिजिकल जनरल पूछना है, मेंटल जनरल का पूछना है, अगर यू आर आस्किंग अबाउट फियर और इफ यू आर आस्किंग अबाउट गुस्सा कब आता है, ओके, या रोना कब आता है, या खाने में क्या पसंद है, ऑलवेज आस्क सबसे ज्यादा, दी मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक दी मोस्ट इन द फूड, ओके, फियर, व्हाट आर यू द मोस्ट अफ्रेड ऑफ, गुस्सा, सबसे ज्यादा गुस्सा क्या बातों पे आता है, समझते हो, इट डायरेक्टली फोकस द पेशेंट टू वेरी स्मॉल एरिया, तो वही बताएगा, वो फालतू की 10 चीजें नहीं बोलेगा फिर, है ना, इट हेल्प्स। तो ये सिंपल टिप है एक, सबसे ज्यादा कब होता है, सब, जैसे हमने ईचिंग में पूछा, क्या पूछा उसको, व्हेन इट इचेस द मोस्ट, समझते हो, कुछ फैंसी नहीं, Yes, इतना sir. सिंपल। ओके, थर्स्ट में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर्सपिरेशन ऑन चेस्ट, स्टूल में he may be constipated, he takes isabgol regularly on alternate nights and thermally is hot, जो उसने आगे भी बोला कि गर्म पानी से तकलीफ होता है। अभी ये सब हो गया, अभी मेंटल बाकी रहा, और एक चीज आई मेंशन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो इन दिस ऑर्डर ओनली, कि हमेशा पेशेंट का पहले ये फिजिकल ले लिया, फिर जनरल लिया, फिर मेंटल लिया, नहीं, पेशेंट बीच में अगर शुरुआत में चीफ कंप्लेन में मेंटल बोलता है तो गो टू मेंटल, व्हाई नॉट, जहाँ पेशेंट जाता है अपने को जाना है। अने मैंने क्या बोला है, जो बोल रहा है पेशेंट लाइन लिखो, फिर बीच में अगर कूद के जा रहा है तो छोड़ दो, फिर वापस जाके उसको कंप्लीट करेंगे। सेम थिंग वी आर डूइंग, इसमें ऐसा नहीं कर रहा है तो हम फॉलो अप कर रहे हैं वो फॉर्मेट को। ओके, तो अभी हम पूछेंगे मेंटल का, एनी स्ट्रेस यू हैव हैड, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अभी तक पेशेंट का जो भी आंसर आया है उसके हिसाब से आप क्या समझते हो पेशेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा होगा, वो कितना बोलेगा, आपको क्या लगता है मेंटल्स के बारे में, सिंपल लॉजिक। अभी तक बोला क्या उसने कुछ भी इमोशन का, नहीं ना, No, sir. हाँ, तो आगे भी नहीं बोलेगा, सिंपल, या डिफिकल्ट रहेगा, उतना समझ आता है। तो इसलिए ये इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ओके। तो उसने सारे अपने को आंसर यही दिए, इतनी सारी मेडिसिन एकदम प्रिसाइजली कौन बोलता है, इतना सारा प्रिसाइजली कौन बताता है मेरे को, ये साल में ऐसा हुआ था। सो इज इट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो रैंडमली कुछ भी मेंटल के बारे में पूछ सकते हो, तो सिंपल क्या बोलेगा, स्ट्रेस बोलेगा, कुछ भी पूछ सकते हो, हाँ। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कि आपको ये क्वेश्चन करना है फर्स्ट या सेकंड, खासकर मेंटल्स में कुछ भी पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय हिज आंसर। तो स्ट्रेस में नथिंग नाउ, अर्लियर ही यूज्ड टू हैव बिजनेस स्ट्रेस, ही इज अ बिजनेसमैन, अभी रिटायर हो गया है और अभी वो ट्रस्टी है, काफी पैसे वाला है, तो यहाँ वहाँ ट्रस्ट में पैसा रोक के बैठा है, कहीं और जगह इन्वेस्ट करके रखा है, तो अभी स्ट्रेस नहीं है, ओके। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी स्ट्रेस नहीं है, पहले था, तो हम क्या पूछेंगे, ओके पहले क्या था, सिंपल, हमें तो स्ट्रेस समझना है ना, हमने क्वेश्चन क्यों किया था, स्ट्रेस समझने के लिए, समझ रहे हो लॉजिक कैसे जाना है केस टेकिंग में। Yes, sir. इसके बाद भी अगर वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, ओके। तो पहले क्या था, ओके, रूटीन बिजनेस टेस्ट, अगेन मतलब वो नहीं जा रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा अभी मतलब नहीं है उससे, ठीक है। और एक बार ट्राई करेंगे, कोई एक आध इंसिडेंस भी याद आता है क्या कि जिसमें बहुत स्ट्रेस रहा था, नथिंग एज सच, ओके। 3 बार पूछ लिया, नहीं जाने वाला अभी वो, ठीक है, दिस यू हैव टू जज कि अभी इससे आगे वो नहीं जाएगा इसमें, या ये कितना इंपॉर्टेंस देने लायक है, सो विल चेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ड्रीम्स यू रिमेंबर, ओके, दिस इज द टिप, एनी टाइम यू फील कि पेशेंट लॉजिकल है, अभी उसको मेंटल्स में कैसे ले जाए, कैसे वो शिफ्ट होएगा, हाँ, कि वो कैसे रेपो बनेगा या वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, सो दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली आस्क अबाउट ड्रीम्स और फियर्स। व्हाट आई यूजुअली डू,
or what Dr. Shankaran does is ask about dreams directly. Okay, क्योंकि ड्रीम में उतना लॉजिक नहीं डालते पेशेंट्स, तो उसके लिए ड्रीम ड्रीम है, वो बोलने के लिए बोल जाएगा, देन वी कैन एक्सप्लोर इट. ओके, सो वो सबकॉन्शियस शिफ्ट अपने को डायरेक्ट मिलता है मेंटल के लिए. सो डायरेक्टली आई आस्क अबाउट ड्रीम. दिस इज द रीजन बिहाइंड आस्किंग द ड्रीम. ओके, आई हैवंट नोटिस स्पेसिफिकली, वेरी रेयरली आई हैव देम. ओके, तो नहीं जाने वाला. ओके, व्हाट अबाउट फियर्स? Is some fear of water. Okay, while bathing too, if the water goes to my nose, I'm afraid. Okay, because I don't know swimming, so I also go to swimming pool or water or beach, I get very fearful that something will happen, I will drown or my breath will stop. Okay, this is the fear. Okay, अभी उसने पूरे केस में अभी तक में एक ही सिम्टम दिया. इट मे बी कॉमन, but why not explore it? Okay, so I ask, okay, tell me about the experience of drowning. Okay, I'll tell you later on, or maybe I can tell you now. What I do in practice is normally called as the sensation method. Okay, so we try to go in the subconscious of the patient, the emotions, then the delusion, then the experience, and patient may talk about his or her source or the family of that medicine or the group symptoms. Okay, so I asked this about the experience of drowning. This is a common question there. So he said, no, I haven't felt like that, but suppose we dive into a pool and come out. So how you usually feel? Very uneasy like that. Okay, tell me about the uneasiness. ये सारा वो समझने के लिए है, समझो. ड्राउनिंग सब बोलेगा, अनइजीनेस में क्या होता है? ब्रेथलेसनेस और सफोकेशन. ठीक है, तो ये कॉमन है, आपको मुझको सबको होता है अगर पानी नाक में गया तो, कि अनकॉमन है, तो उसमें जाने का मतलब नहीं है ज्यादा. ओके, टेल मी अबाउट योर बेसिक नेचर. नॉट दैट आई गेट एंग्री मोर ऑफ्टन, कई कई बार होता हूँ, कई बार नहीं होता. ओके, आई लाइक म्यूजिक मोर, ऑल्सो आई लाइक रीडिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स. I don't like if someone says something wrong, like it's not true and wrong about us. अपने बारे में किसी ने गलत बोला. तो ये होता था क्योंकि he used to do business, तो होता था ना, बिजनेस में होता है, आपके नाम के ऊपर चलता है कई बार. तो आपके बारे में अगर गलत किसी ने बोल दिया है तो इट अफेक्ट्स योर बिजनेस. तो ही नेवर यूज्ड टू लाइक दैट. ओके, अभी पहले हमने फियर पूछा था, उसने नहीं बोला था. ऑल्सो समझो, आपके पास ऑलवेज 2-3 रास्ते होते हैं सारी चीजें पूछने के. जैसे फियर आप पूछोगे, फियर अभी का बोलेगा, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट फियर ऑफ द चाइल्डहुड. अभी आप नेचर पूछते हो, अभी का बोलेगा. यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट द नेचर ऑफ द चाइल्डहुड. ओके, या उसका एनवायरमेंट कैसा था, उसका स्कूलिंग कैसा था, क्या करता था उस टाइम, हाउ ही यूज्ड टू बी. So asked about his fears in childhood. Actually, we all grew up with animals, so not of animals. Some fear of snakes and all. खत्म केस. अभी क्या है केस में, क्या देखा, क्या समझा? केस टेकिंग के एस्पेक्ट से पहले, मेडिसिन नहीं इंपॉर्टेंट. एनीवन? Hello. We have 2-3 more cases, so you'll have to be quick. Tell me. हमने केस टेकिंग पूरा किया जो मेथड, उसको लेके कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या किया हमने और क्या पेशेंट ने बोला, कैसे सपोर्टिव रहा पेशेंट. कि जैसे ये वही हो गया हमने जो पहले बात करी कि पेशेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे? हेलो.
Most of the time he's like maybe or maybe not symptoms. हाँ, he is not very sure or Sure, he's not very sure expressive, about symptoms. and Expressive. he actually didn't give us many symptoms too. We only Yes. have 2-3 symptoms in the case. अभी बोलो इसमें It's not मेंटल्स a कितने लेंगे, specific. कितने मेंटल्स लेंगे इसमें से? Should we take fear of snakes or fear of water or drowning or not? कि ऐसा पूरा उसने ड्राउनिंग का एक्सपीरियंस बोला, वो सफोकेट हो रहा था, तो विल थिंक ऑफ सम कार्बन. Suffocation and breathlessness, so has everyone. It has हाँ, everyone. If we go in राइट, water. राइट. सो मेनी टाइम व्हाट हैपेंस विथ अस, क्योंकि ये पूरा मेंटल्स का जो सिम्टम है ना, इज वेरी फैसिनेटिंग. तो कई बार व्हाट वी डू, इस पेशेंट ने ऐसा बोला है ना, पेशेंट ने जैसे कई बार स्नेक मेंशन किया ना, कि क्यों किया, तो अपन उसको लाइक केसेस देंगे यार स्नेक मेडिसिन होगा वो, या फिर उसने ऐसे बोला है तो लाइक दिस हैपेंस जनरली विथ दोज हु प्रैक्टिस ऑन ग्रुप सिम्टम्स और किंगडम मेथड. तो अभी जैसे ये पूरा बोला तो इट कम्स इन मैनी मेडिसिन लाइक हेमामिलिडी फैमिली, और कार्बन्स और नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन और मॉलस्क और कैक्टेसी, जिसको सफोकेशन या क्लॉस्ट्रोफोबिक ऐसे फील होता है. कैक्टेसी में कैसे होता है ना, Yes. कड़ेसी में कैसे होता First है. of all, he's never take medicine regular for month हाँ, वो उसका नेचर है. nature. Yes. So ऑल्सो आई टेल यू, ये फोटो उसने घर से कैसे भेजे हैं, आफ्टर मेनी मंथ्स आई कॉल्ड हिम कि आप मुझे बोलो आपको कैसा है, एंड देन ही सेड आई एम परफेक्टली फाइन. अभी इस बात को 2-3 साल हो गए, बट ही इज परफेक्टली फाइन. तो मैंने तभी उसको बोल के रखा था, यू टेल मी एनीथिंग इफ हैपेंस टू यू. तो तो ये कितने ये टाइम बाद उसने एग्जैक्टली पिक्स आपको सेंड किए थे? 3 महीने बाद आई थिंक. हाँ, एंड कितने टाइम में रिलीफ मिल गया था? 15 दिन में आई थिंक. ओके. इट्स अ वेरी सिंपल मेडिसिन एक्चुअली. And I think more than 2-3 years has passed now, because he came after the first wave of COVID. 2 साल तो हो ही गए. अभी और एक चीज, हाँ, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रीट हिज डायबिटीज और थायराइड और sciatica. हाँ, वो एकदम प्रैक्टिकल बंदा है. उसको मतलब क्या है, वो क्या चीज के लिए होम्योपैथ के पास गया था, स्किन के लिए. अपने पास क्या लेके ओनली आया, फॉर स्किन. व्हाट आर द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. अगर यू ऑल्सो फॉलो Hahnemann's chronic disease idea, we only have to treat the presenting picture of the case or the miasm, whatever it is. तो अभी उसके सिम्टम्स मोस्ट प्रोमिनेंट जो है हम उसको ट्रीट करेंगे. उसके बाद 5-10 साल में अगर उसको आना है वो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा. हम्म? अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उसको मायाजम फ्री कर देंगे, क्योर कर देंगे, नहीं. प्रैक्टिकली इट डजेंट हैपन. पेशेंट अपने पास ये, यू विल लर्न दिस विद डॉक्टर मनन टू. पेशेंट अपने पास जो लेके आता है उसको उसमें रिलीफ होने को मांगता है, नहीं तो नहीं आएगा वापस. एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो मेनी टाइम्स इन क्रॉनिक केसेस व्हाट आई आस्क, पेशेंट को पूछते हैं ना बताओ क्या होता है, तो पेशेंट स्टार्ट्स मेंशनिंग 5-10 कंप्लेंट्स. मेरे को पेट में होता है, मेरे को ये जॉइंट्स में होता है, मेरे को मुंह में छाले पड़ते हैं, मेरे को सर्दी जुकाम रहता है, मेरे को सर दर्द रहता है, मेरे को कमजोरी रहता है. अभी 5-10 चीज में से क्या मेडिसिन दोगे आप उसको. सो नेक्स्ट थिंग आई आस्क प्रेजेंट इज, कंप्लेंट. हाँ, सो नेक्स्ट नहीं, प्रेजेंट भी उसमें से मल्टीपल होता है. सो मेनी टाइम्स आई आस्क व्हाट इज द मोस्ट ट्रबलसम थिंग टू यू. दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क. तो बोलेगा कि क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड देन वी कैन वेट. तो अभी समझते हैं कि वो प्रैक्टिकल बंदा, लॉजिकल, बहुत ही शॉर्ट अपने को हिस्ट्री दिया है, मेंटल्स दिया है, उसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. तो व्हाट डू वी हैव, ओनली द LSMC इन द केस. ओके, टोटालिटी का जिसने क्वेश्चन किया था, इस केस में मोस्ट क्लियर जो सिम्टम्स हैं वो है LSMC. ओके,
किसी को मेडिसिन बोलना है क्या? बहुत सिंपल है। इसने बोला था ना इरप्शन स्क्रैचिंग के बाद होता है, ही हैज टू स्क्रैच, द इचिंग इज वायलेंट, स्क्रैचिंग से एग्रावेट होता है, चेस्ट पे पर्सपिरेशन होता है, और उसको हॉट से एग्रावेट होता है, कोल्ड से अमेलिएट होता है। सिंपल। पल्सेटिलाइन फेगोपाइरम क्या देंगे? सिंपल, फेगोपाइरम। दिस इज द कीनोट सिम्टम ऑफ फेगोपाइरम, इचिंग रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। आंख बंद करके यू कैन गिव फेगोपाइरम, थेराप्यूटिक इंडिकेशन है। ओके, उसका की नोट है, एनी डैम स्किन कंडीशन, if the itching is violent and aggravated from hot, ameliorated by cold, you give fagopirum. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, give fagopirum. Simple. Yes, sir. Okay. बट केस टेकिंग में क्या था, हमने पूरा लिया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसमें मेंटल्स लिया बट इंपॉर्टेंट नहीं था। ड्यू वेटेज इज ओनली ऑन द प्रेजेंटिंग और पर्टिकुलर सिम्टम्स हियर। कोई जनरल भी हार्डली लिया है हमने, ओनली वन सिम्टम ऑफ चेस्ट पर्सिपिरेशन, क्योंकि मेरे पास कम पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि छाती पे पसीना होता है सिर्फ। दैट टू हैव 200 मेडिसिन्स। Shall we move on? Yes, sir. Okay, this is a lovely case. A young male of 26 came with this. Okay, ये what is this? Diagnose. Simple. These are warts. These are flat warts. Okay, याद रख लेना, ऐसे Yes, sir. दिखता है फ्लैट warts। तो उसको कहीं ऐसे कान के पीछे शुरू हुआ था, फिर ये यहाँ लेफ्ट राइट कहीं पे हुआ। उसने डर्मेट को कंसल्ट किया, उसने सारी डर्मेट की मेडिसिन ली, उसने लेजर थेरापी की, वो बढ़ता चला गया। ओके, उसको यहाँ बेड के अंदर भी रहा, जिसका फोटो मैंने नहीं लिया है शायद। एंड दिस इज द रीसेंट फोटो, 1 हफ्ते 10 दिन पहले शायद। ये कान वाला देख लो, ये देख लो। ओके, एंड दिस वाज आफ्टर Yes, sir. 3 to 5 days ऑफ मेडिसिन। चला गया। ओके, I've kept this case in Hindi. Okay, it was actually a Gujarati case. Okay, बोलो। सो ये साइड एलर्जी हुई, स्किन के डॉक्टर को दिखाया, लेजर ट्रीटमेंट किया, फिर बंद हो गया। अच्छा, सॉरी, फिर बढ़ गया, अच्छा तो हुआ नहीं। अब कान के पीछे बहुत इचिंग होती है और नए होने लगते हैं उस वो ट्रीटमेंट के बाद। फोरहेड पे, नेक पे इचिंग होती है। एंड ही इज अप्लाइंग सम नेरिस ऑफ क्लीनिंग लोशन। सारा डिटेल दे दिया। अभी क्रोनिक में अगेन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसे एक्यूट में करते थे एलिमेंट, क्यों? क्योंकि कई बार क्रोनिक्स में, खासकर स्किन कंडीशन में, इफ यू हैव हर्ड डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी, तो बोलते हैं कि स्किन कंडीशंस में खासकर यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एट टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अगर नहीं काम कर रही है तो यू कैन ऑलवेज गो टू थेरेपी प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, स्पेसिफिक जो रहती है, जो मोडालिटी से डिफरेंशिएट करके, क्या उसके लोकेशन या अपीयरेंस को देख के देते हो वैसे। शुरुआत कैसे हुई थी, तो उसने पूरा, अभी ये क्यों है, एलिमेंट के पीछे नहीं है, ये ओडीपी है उसका। ओके, प्रोग्रेशन कैसे हुआ था, फर्स्ट क्या अपीयर हुआ, सेकंड क्या अपीयर हुआ, क्यों है ये। जैसे मेनी टाइम्स यू सी, जैसे लाइको में है ना, राइट में हुआ, लेफ्ट में हुआ, लेक्केन में कैसा है। तो सिमिलरली वी हैव अ रूब्रिक इन फाटक, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो मेनी टाइम्स दिस हेल्प्स इन स्किन कंडीशंस और एनी अदर केसेस, कि पहले कहाँ हुआ, पची सॉरी बाद में किधर हुआ। तो पहले राइट ईयर के पीछे हुआ था, फिर लेफ्ट फोरहेड पे, देन राइट फोरहेड पे, देन लेफ्ट पे। तो ये मैं ऐसा देखा कि अगर मेरे पास कोई सिम्टम ना रहे केस में, तो आई कैन टेक दिस अल्टरनेटिंग साइड्स या मेटास्टेसिस या कुछ भी ऐसा रूब्रिक, हाँ, चेंजिंग साइड्स वाला। देन अगेन ऑन राइट,
तो लेफ्ट राइट हो रहा है ये। ओके, इतना हिंट मिलता है अभी। यस, उसको लगा वो बढ़ जाएगा, फिर उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने फिर दूसरे डॉक्टर ने लेजर ट्रीटमेंट करी, फिर लास्टली अगेन राइट ईयर पे हुआ। उसके पहले नेक पे राइट साइड पे था, जिसका फोटो नहीं है अपने पास। एंड इट ऑल स्टार्टेड इन जुलाई 21। सितंबर में ही वेंट टू अ डॉक्टर, तब से ट्रीटमेंट चालू थी। ओके, अभी ये हम उसका एलिमेंट में जा रहे हैं। उसके पहले क्या हुआ था? हाँ, तो वो बोलेगा उसके पहले क्या था, बीमारी था, स्ट्रेस था, कुछ भी। तो वो बोल रहा है जॉब स्ट्रेस था। फर्स्ट थिंग क्या बोलता है? जॉब स्ट्रेस था। तो पॉसिबल है कि उसकी लाइफ में जॉब स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, बट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में हो उसका मतलब क्या है? कभी भी आपको छोड़ सकते हैं, परमानेंट नहीं है। ओके, गवर्नमेंट, अभी ये समझो आपको ह्यूमन नेचर का ये सब चीज का अंडरस्टैंडिंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटालिटी समझ आए। तो सिर्फ इतने सेंटेंस का मतलब क्या बनता है? जो नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी रहती है कि अपने को परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एक फिक्स इनकम हो, अपने को लाइफ सेट हो, सिक्योरिटी हो एक फाइनेंशियल। ओके, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो ये एक सेंटेंस से अपने को उतना समझ आ जाता है। अभी हम बाद में समझेंगे जॉब स्ट्रेस क्या था क्या है। तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी कॉलेज के बाद, पहले की बात है। उसके कॉलेज के बाद वो एक साल घर पे रहा, तब जॉब नहीं मिल रही थी, फिर उसको 2019 में जॉब लगी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट नहीं है। तो उसने क्या किया? बैंक की एग्जाम दी डिस्ट्रिक्ट की। क्यों? एक अच्छी जॉब के लिए जो परमानेंट हो। तो वहां उसने वो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गया, बट ही कुडंट पास थ्रू इट, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये हुआ था 2020 के एंड में। ओके, क्यों? क्योंकि आई वांट टू सेटल इन अ जॉब, परमानेंट जॉब, यही आ गया। बट ये सब आपको फर्स्ट लाइन से समझ आ जाता है, ठीक है। अभी उसने ये सारी चीज में क्या बोला? जॉब 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 जॉब, और क्या? परमानेंट जॉब। तो उसका स्ट्रेस ये है, समझ गया इतने में? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करता हूँ? ड्रीम्स के आते हैं। क्यों? क्योंकि 26 साल का कोई भी लड़का बोल सकता है ना कि उसको परमानेंट जॉब चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? 26 साल का है ना, अर्निंग टाइम है उसके फेस का ये। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके केस की, क्योंकि ये एज में नॉर्मल है। ओके, और वो सिचुएशन में भी नॉर्मल है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो हम बाद में देखेंगे कि क्या वो वापस आ रहा है क्या, उस पे रिपीट हो रहा है क्या। अगर रिपीट होता है उसको, आई टेल यू वन थिंग, ये जो मेथड है सेंसेशन मेथड, या ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं, तो वो अलग अलग लाइफ के एरियाज में अगर रिपीट हो रहे हैं, देन इट इज इम्पोर्टेंट। एक आध बार बोला और एरियाज में नहीं बोला तो नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इट शुड रिपीट, इट शुड बी अ रिकरिंग फेनोमिनन। ड्रीम्स में क्या आता है? फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे और ऐसे ड्रीम है। दूसरे क्या ड्रीम है? कि जॉब से निकाल देंगे, अगेन जॉब आया, ठीक है। और मैरिज का ड्रीम है, और उसमें क्या है? मैरिज का ड्रीम क्या है? कि इसकी जॉब पे इफेक्ट होगी, सॉरी मैरिज पे इफेक्ट होगी। ओके, तो अभी फ्रेंड वाला ठीक है, जॉब वाला उसने रिपीट बोला है, मैरिज पे इफेक्ट होगी, वो उसको कुछ वरी है। ओके, सो आई आस्क अबाउट दिस टू। तो जॉब वाला क्या है बोलो, वो ड्रीम बताओ। तो उसको ड्रीम में ऐसा आता है कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर साल रिन्यू होता है, और उसमें अगर ऐसा हो गया कि किसी को परमानेंट जॉब मिल गई बाहर से, और वो यहाँ आ गया हमारी जॉब लेने, तो हमें निकाल देंगे। ओके, तो उसको ड्रीम ऐसा आया कि कुछ 32 लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, और उन लोग को बोल दिया कि आपके पास 1 मंथ है, आपको निकाल देंगे। तो उनको निकाल भी दिया। ओके, और उसमें से एक मैं था, जॉब नहीं थी, घर पे थे। ओके, तो ड्रीम भी वही आता है कि जॉब से निकल गया। अभी दूसरी बार रिपीट हुआ ना ये, सो इट इट इज Yes, इम्पोर्टेंट। sir. ओके, ओके, तो इसमें फील क्या होता है? बहुत खराब, रोना आ जाता है।
आगे जॉब नहीं है और घर पे ही है। ओके, ये नॉर्मल है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। पर वो आगे बोलता है मन में डर रहता है, मेरे साथ वाले सब आगे निकल गए, सबके पास जॉब है, मैं ही घर पे हूँ। ही इज ऑलरेडी डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो बाकी लोग से तो अच्छा ही है। हाँ, जो प्राइवेट कर रहे हैं या उससे कम अर्न कर रहे हैं, जो नहीं अर्न कर रहे हैं, बट स्टिल उसको लगता है कि लोग कहीं आगे पहुंच रहे हैं, मैं कहीं पे अटका पड़ा हूं। मुझे खराब फील होता है इसको लेके। इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है बहुत सिंपल, ये रूब्रिक है। मेरे साथ वाले आगे निकल गए और मैं यहीं का यहीं रह गया। क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स, एक्सप्रेस करके बताऊं क्या? ये क्या होता है? ऐसा इशारा करके क्या बोलता है पेशेंट? कोई भी बंदा, ये क्या है? क्या ये क्या है? समझ रहे हो? हेलो? चैट देखनी पड़ेगी। डेस्टिनी, नसीब, सही बात है। हाँ, तो मेरे साथ वाले आगे निकल गए, मैं यहीं का यहीं रह गया, अपना नसीब ही खराब है। समझते हो? ये दिस इज अ सटल थिंग। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, समझते हो आप? तो इसका रूब्रिक है अनफॉर्चुनेट फीलिंग। सिंपल मेंटल दे दिया उसने। एक मेंटल मिल गया, कुछ मिले ना मिले, उसको लेके उसको खराब फील होता है। मेंटल ऐसा पेशेंट बोलेगा नहीं हर बार कि मेरे को ये फील होता है, मुझे अकेले कोई जॉब नहीं मिलती। देखो ये यही आ गया है ना वापस, अनफॉर्चुनेट है। तो फ्यूचर में क्या होगा? अभी ये फ्यूचर का एंजाइटी, परमानेंट जॉब नहीं है, जब तक फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मेरा मैं कर नहीं पाऊंगा, घर का संभालना तो दूर की बात है, फैमिली का कैसे संभालूंगा, मैं अपना ही नहीं कर पाऊंगा तो। 30 दिन में फिर छुट्टी दे देते हैं कि घर पे जाओ, जॉब नहीं है, खराब लगता है, डर लगता है। डर क्या लगता है उसको? बोल दिया उसने, फ्यूचर का। हाँ, फ्यूचर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, घर को संभालने का। अकेला घर पे रह गया, आगे घर का कौन देखेगा? हाँ, पापा की जॉब है लेकिन वो 1-2 साल ही है अभी, उसके बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। वो भी गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं बोलो, फिर भी उसको टेंशन है। हम्म उनकी पेंशन आने वाली है। तो इतने मेंटल्स में से आपको क्या मेंटल्स मिले अभी? क्या 2-3 चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक में? बोलो। ये केस टेकिंग से समझ जाएगा अभी। हेलो? जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस क्यों है? डीप क्या है जॉब स्ट्रेस के? डीप में क्या है? कॉमन इंक्रीमेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेके, है ना? सिंपल थिंग। ओके। हर बार अपने को जैसे एक सिम्टम मिलेगा, उसकी डेप्थ में जाएंगे तो हम ऊपर वाला छोड़ भी दे सकते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर क्या है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एग्जैक्टली। लेकिन क्या फ्यूचर? फाइनेंशियल फ्यूचर, है ना? घर संभालेंगे कैसे, पैसे नहीं रहेंगे, तो उसका ये इशू है। उसका हेल्थ का या और कोई इशू नहीं है। समझे? यस सर। अभी उसने एक ड्रीम बोला था जॉब वाला, वो हमने एक्सप्लोर किया। अभी मैरिज का बाकी है, इसकी मैरिज पे इफेक्ट होगी, इसकी मतलब किसकी? ये वॉट्स की। हाँ, लॉजिक बनता है नहीं बनता है? तो पूछेंगे उसको। हाँ, वो डर का बीच में बोला तो डर पूछा, तो डर का क्या होता है? एक जॉब का, एक मैरिज का। ओके, मैरिज का बताओ। इसने बोला ना अभी, फियर होता है, डर लगता है। हाँ, तो डर क्या होता है? जॉब का और मैरिज का। जॉब का हमने समझ लिया। अभी मैरिज का क्या था? इसकी वजह से रिजेक्शन आ गया तो मैरिज नहीं हुए तो। हाँ? अगर हो भी, अगर मैरिज हो भी गए, फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आई तो, फ्यूचर पे असर हुआ तो कितना टाइम रहेगा? अभी इसका क्या मतलब है? आगे की लाइन मत पढ़ना। इसका क्या मतलब है? उसको मैरिज लाइफ में, सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसको ये लगता है। समझते हो? ये उसके एंजाइटी है। अभी वो बोलेगा नहीं मेरे को एंशियस फील होता है, मेरे को चिंता होती है। ये एंजाइटी दिख रही है आपको, समझते हो? यस सर। तो अगेन ये क्या रूब्रिक है? एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, है ना?
ये उसको नॉलेज नहीं है कि ये स्किन उस पर अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसलिए उसको फियर है एक इमेजिनरी, वो एंजाइटी है। और वो अगर ये सब हुआ तो उसका मॉम डैड पे क्या असर रहेगा, वो लोग दुखी हो जाएंगे और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसको आप और एक रूब्रिक डाल सकते हो, लेना हो तो एंजाइटी अबाउट अदर्स और फैमिली मेंबर्स। सिंपल। हेलो। अभी यस मेरे सर। अभी मेरे को बोलो, इतना सारा एंजाइटी फैमिली जॉब को लेके है, आप कौन सा मेडिसिन सोचोगे? इतना ही सिंपल हो जाता है। सर कॉस्टिकम। कॉस्टिकम सिंपल है। और क्या सोचोगे? कॉस्टिकम बिकॉज अर्जेंटम एंजाइटी नाइटिकम। के साथ फ्लैट वॉट्स है फेस पे, तो उसके लिए भी कॉस्टिकम अच्छा है। बढ़िया है। और क्या सोचोगे? कैलकेरिया फ्लोर भी आता है, एंजाइटी ऑफ आ हेल्थ, मनी सकता है। मैटर्स, हाँ फ्यूचर। तो वही है बेसिकली, कि फोर्थ रो जो पूरा रहता है उसका इश्यू ये रहता है। आर्सेनिक अपने को पता है, कैलकेरिया काली पता है ना? तो सबके इश्यूज फैमिली और फाइनेंस और सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के रहते हैं। तो इतना सिंपल समझ आ जाता है कि केस में क्या बोला उसने रिपीटेडली, फ्यूचर का है, सिक्योरिटी का है, हेल्थ का है। हाँ। तो अगेन ये एक और अलग चीज है कि जो आपको अगर सिम्टम्स तो पता है मेडिसिन के, पर आपको अगर ग्रुप सिम्टम्स भी पता हो, जैसे फोर्थ रो के सिम्टम है, तो आपको हेल्प मिलता है। अच्छा, वो लोग दुखी होंगे, हाँ तो मेरे उम्र का कोई लड़का हो, हाँ, तो मेरा लड़का क्यों है ऐसा है, या ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, तो मेरी वजह से वो खराब उनको लगता है, दुख होता है। ओके। अभी वापस मैं उसको जो फियर है उस पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने ड्रीम पूछा है। तो जॉब का क्या डर है बताओ, क्योंकि उसको ड्रीम के अंदर जॉब का डर है। हम्म? तो और वो एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। तो पहले से मेरा मन था कि परमानेंट अच्छी सरकारी जॉब मिले, पर कैसा है इसमें सब, गवर्नमेंट जॉब में पहचान से चलता है और पैसे से चलता है। तो मैं इसीलिए उस टाइम भी अब इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन मेरे को मिला नहीं। पैसे की ज्यादा डिमांड थी, तो मैं फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम भी। तो अपना ट्राई चालू ही है, अप्लाई करता रहता हूँ कि मिल जाए। मैरिज के बाद इतनी सैलरी चलेगी नहीं, फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। अगेन यही आ गया। अभी ये क्या है? और एक चीज, ट्राई चालू ही है, मैं अप्लाई करता रहता हूँ कि मिल जाए, व्हाट इज दिस? फियर ऑफ फेलियर। नहीं, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म। ट्राई नहीं छोड़ रहा ना, उसको पता है देखो कि पहचान और पैसे से ही चलता है, बट अपनी ट्राई चालू है, कभी ना कभी मिल जाएगा। समझते हो? अगेन यस सर। बहुत सटल है। एक लाइन में बोल गए, अपना ध्यान नहीं है तो रूब्रिक चला जाएगा अपना, है ना? सिचुएशन उसको मालूम है, बट ही इज स्टिल ट्राइंग। सोरा का सिम्टम है ना ट्राई करना। ओके। तो अभी वो पूरा केस में फ्यूचर 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 बोल रहा है, तो पूछ सकते फ्यूचर पे, क्यों नहीं पूछेंगे? बोलो, बताओ फ्यूचर कैसा चाहिए? जॉब अच्छी चाहिए, फ्यूचर सिक्योर कर सको। हाँ सिक्योरिटी, अभी उसने फर्स्ट टाइम बोला केस में कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली का देख सकूं, मैरिज का देख सकूं, और आगे बढ़ सकूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी और एक समझो, अगर आपको ग्रुप सिम्टम पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने पे सिक्स रो नहीं आ जाता है कि ऑरम लाइन आ जाएगा या बराइटा आ जाएगा, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे ह्यूमंस बोलते हैं। ये जो बात कर रहा है वो क्या है, ड्यूटी की बात है। कि मेरे को घर का करना है। ड्यूटी कौन से रो का इश्यू है? फोर्थ रो का। अगेन। हम्म अभी ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको कोई भी दुनिया में चीज कब कैसे भी करके पूछनी है, पूछ सकते हो। तो अगर आपको पता है आपका पेशेंट कुछ चीज में बिलीव करता है, नहीं करता, तो मैं उसको पूछा, भगवान में बिलीव करते हो? क्या चीज में करते हो? बोला साईं बाबा में करता हूँ। मैं बोला अच्छा, बोलो अभी अब भी तुम्हारे सामने साईं बाबा आ गए और बोले कि तीन चीजें दूंगा, तो क्या मांगोगे? और जनरली सारे लोग यही बोलते हैं कि बस इससे बीमारी से छुटकारा चाहिए। तो मैं इसको बोला कि नहीं, बीमारी नहीं, उसको छोड़ के बोल क्या चाहिए। ये क्वेश्चन आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, नहीं कोई सिखाएगा शायद। आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। अगर कोई बोल रहा है हम अल्लाह में मानते हैं, हम मदर मैरी में मानते हैं, हम ये कृष्ण में मानते हैं, हम ये
रामानंद स्वागर में ये अपने ओशो में मानते हैं सदगुरु, जिसको भी अगर आपके आगे अभी आ गया बोलेंगे कि आपकी 5 ख्वाहिश पूरी करेंगे, अगर वो 3 में नहीं बोल रहा है आपको सेटिस्फैक्ट्री, तो और बोल सकते हो अच्छा ये 3 तो आपको दे दी, और अगर 2-3 चीजें मांगने बोले तो क्या मांगोगे? हम्म, समझते हो? तो ये उसकी सबकॉन्शियस जो डिजायर है, नीड है, वो रिफ्लेक्ट करेगा अगेन। तो क्या मांगता है? हैप्पीनेस। कैसे? इतने पैसे कमा सकूं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, है ड्यूटी है, और मेरी फैमिली और जो भी हो वाइफ, वो सबको अच्छे से रह सकूं। अगेन वही आ गया, उसको ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, उसको घर संभालना है बस। हाँ, कैसी हैप्पीनेस? बस मेरी और फैमिली की। अभी बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ये कंफर्म करने के लिए कि इज नॉट फ्रॉम सिक्स्थ रो। फैमिली और मेरी इच्छा जो होती है, हमारी मर्जियां, मन की सब चीजें वो पूरी कर सकूं और उनको हैप्पी रख सकूं। खत्म। मेरा इतना ही है दुनिया में। ओके, अभी टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। शांत था पहले से, गुस्सा ज्यादा आता था, अभी भी आता है, क्रिकेट बहुत खेलता था, फ्रेंड सर्कल बड़ा था, स्टडीज में एवरेज था। ये उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है। ओके, आपको समझ आता है, इसमें एनर्जी नहीं है वो। ये ऑलमोस्ट सारे लोगों का होता है। ज्यादा गुस्सा मतलब क्या गुस्सा? हाँ, उतना एम्फेसाइज ना वो कर रहा है ना हमें करने का जरूरत है। गुस्सा हर एक को रहता है। ओके, टेल मी हॉबीज, इंटरेस्ट क्या रहे हैं? क्रिकेट, घूमना, मूवीज और बुक रीडिंग। अभी ऑलवेज समझो, हॉबीज से अगेन एक सबकॉन्शियस चीज रिफ्लेक्ट होती है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन डिटेल अबाउट इट। खासकर अगर जो मूवीज या बुक्स की बात करें, तो यू कैन ऑलवेज आस्क कि कौन सी मूवी बहुत पसंद है या कौन सी बुक बहुत पसंद है। हम्म? और यू कैन ऑलवेज आस्क टू डिस्क्राइब अबाउट इट। उसके अंदर से कुछ आपको मिल सकता है फैंसी, हाँ, जो उसकी मेडिसिन बोलेगा। फ्यूचर में कभी हम वैसा कुछ केस देखेंगे। तो कैसी बुक्स मैंने पूछा, उसने बोला चेतन भगत की। अभी यंग लड़का चेतन भगत की बुक बोले तो कुछ अनकॉमन है क्या? हेलो? Yes, sir. नहीं, यस है? नो? No, sir. No, यंग है no, ना, no. 26 साल का है। उसको Mm-hmm. क्यों चेतन भगत में इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा? ओके, तो बुक्स के साथ क्यों कनेक्शन बनता है, ऐसा क्या है? तो बोले अंदर घुस गए, फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट जितने लोग को बुक पसंद आती है वो ये बोलेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या फील होता है अंदर? कुछ नहीं, उससे ज्यादा आगे जा ही नहीं रहा है। ओके, अभी नेचर कैसा है पहले का तो समझ लिया। अभी भी गुस्सा है, चिड़चिड़ापन होता है, पर फिर बाद में सोचता हूँ कि गलत कर लिया यार, गुस्सा। ठीक है। जिसको थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होती है, जो इतना सोच रहा है घर परिवार के मामले में, तो उसको समझेगा बाद में जाके कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। ओके, एपेटाइट ठीक है। डिजायर देखो, X+3, चिकन+3। बाकी उसने सारा बोला है, भिंडी, आलू, चीज, कॉफी, बियर, कोल्ड खाना, ब्रेड, स्पाइसी सब पसंद है। तो ये सारे रूब्रिक नहीं लेंगे अपन। हाँ, 2 ही रूब्रिक लेंगे, या 2 में से एक भी ले सकते हो, या 2 में से 2 ना लेने हो आपको, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट पेशेंट ये सारा बोल सकता है, उसके लिए आपको इंटेंसिटी उसका लेना पड़ेगा। अगेन, इंटेंसिटी कैसे जज करना है? बहुत सिंपल चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे जज करते हो इंटेंसिटी ऑफ एनी क्रेविंग और अवर्जन या एनी अदर सिम्टम इन दैट केस? टेल मी। या इवन थर्मल्स, किसी भी चीज का इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस टेकिंग। क्योंकि ये आपको जिसने बोला था ना अभी बीच में, टोटलिटी या इवेल्युएशन करने में इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी वाइज? पेशेंट कैसे बोल रहा है? कॉमन सेंस। सर ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके सामने 3-4 चीजें पड़ी है खाने की, तो आप पहले क्या उठाओगे, आप पहले क्या खाओगे उसमें से? राइट। अगर मोस्ट फेवरेट में नहीं बता रहा है तो। हाँ, फिर और क्या ऑप्शन है? सॉल्टी चीजें पसंद है या स्वीट चीजें, स्पाइसी? नहीं, पर पसंद डिसाइड कैसे करोगे कि उसको ये
देखो जैसे अभी आपने बोला कि वो 4 चीजों में से, आप मेरे को पूछो कुछ, मेरे सामने 4 चीजें रखी तो मैं क्या उठाऊंगा? पूछो ना कोई, मेरे को आंसर करना है। जैसे आपके सामने डेजर्ट है या कोई स्पाइसी चीज है या वेज नॉन वेज जो भी है, तो पहले आप क्या उठाओगे? या पेशेंट के एक्सप्रेशंस भी आते हैं कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है या मुझे कोल्ड वाटर बहुत पसंद है, ऐसे वो थोड़ा फेस पर भी दिखता है, कुछ पेशेंट्स के डिस्क्राइब करते हैं उस तरह से एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। मुझे क्रेविंग आती है उस तो चीज की, ऐसा बोलते हैं। राइट, तो हम सिर्फ उसका आंसर नोटिस नहीं करते कि वो क्या चूज कर रहा है, क्या हम्म। बोल रहा है। हम नोटिस करते कि वो कैसे बोल रहा है। समझते हो? अगर हमने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बिना सोचे या एकदम कम टाइम में अगर वो बोल रहा है चॉकलेट्स, फर्स्ट थिंग, डार्क चॉकलेट्स स्पेसिफिकली, तो ये स्पॉन्टेनियसली जो आता है इंटेंसिटी के साथ, हाँ, और उसके साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। जैसे वन ऑफ माय पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन, उसने कैसे बोला, चॉकलेट इज माय कंफर्ट फूड। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? हम्म? तो ये इमोशन है अंदर, कंफर्ट, समझते हो आप? तो चॉकलेट डिजायर है उसको। हम्म? तो ऐसे वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वर्बली, फेशियली, बॉडी लैंग्वेज वाइज, उसका वॉइस भी लाउड हो सकता है, डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी। आप समझते हो? एनर्जी आ रही है क्या, वो जज करना पड़ेगा। अभी एवर्जन में उसने बैंगन और चौली डाला है, मैं नहीं लूंगा, उसमें एनर्जी नहीं है। पर्सपिरेशन होता है फोरहेड पे, कान के पीछे होता है, और हम्म, और ज्यादा कुछ नहीं है। थर्मल में आप चाहो तो 4-5 सवाल पूछ सकते हो, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ आपको, ठंडी गर्मी में क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। एक सवाल में हो जाता है मेरा। आप 4-5 भी पूछ सकते हो, आप कंबल लेते हो, नहाने के लिए कैसा पानी यूज करते हो, पीने के लिए कैसा करते हो, खाना कैसा करते हो, उसके बाद भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो एक सिंपल क्वेश्चन करके निकल सकते हैं आगे। तो ये थर्मली हॉट है। पास हिस्ट्री में कुछ खास नहीं है। और एक क्वेश्चन, उसको टीवी में, सीरीज में, न्यूज में क्या चीजें हैं जो सेंसिटिव है उसको, क्या चीजें उसको अफेक्ट करती है? उसने बोला मूवीज और वेब सीरीज। ओके, उसके बारे में बताओ। तो फिर वो बोलेगा उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कौन सी चीजें, तो उरी मूवी देखी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक बोलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। अभी मेडिसिन आप सबको पता है। फर्स्ट थिंग, उस अपने को एकदम क्लियर क्या पता था, अनफॉर्चुनेट फील करता है, एंजाइटी है फ्यूचर को लेके, होपफुल है, एग्स और चिकन डिजायर, और फ्लैट वॉट्स है। अगर पूरा केस नहीं भी मिलता था तो भी आंख बंद करके फ्लैट वॉट्स फेस पे आप कॉस्टिकम दे सकते थे, ठीक है। बट कंस्टिट्यूशनल उसका सॉरी कॉस्टिकम, तो उसको 30 में थी। और देखो इंटरेस्टिंगली इधर कैलकेरिया भी आ रहा है, हाँ, जो कि अगेन थर्ड थर्ड रो का मेडिसिन है। कॉस्टिकम कैसे है? कॉस्टिकम थर्ड रो, सॉरी फोर्थ रो का मेडिसिन है। कॉस्टिकम काली से बनता है ना, पोटेशियम है, अगेन फोर्थ रो। सिंपल है, सारा मेंटल्स और जनरल्स ही लिया है हमने, और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि पेशेंट ने वही बोला है, पैथोलॉजी में कुछ था ही नहीं, इसमें सिम्टम्स नहीं थे, सेंसेशन मोडालिटीज नहीं थे इसमें। इसमें क्या था? मेंटल्स और जनरल्स। और उसके साथ पैथोलॉजी क्यों कवर करनी जरूरी थी? क्योंकि उसी के लिए आया है तो मेडिसिन उस पर काम करनी चाहिए ना। 2 साल वो डरमेट का ट्रीटमेंट लेके आया, लेसर वेसर कर दी उसने, अभी वो पूरा कंटाल गया, खत्म हो गया अपना, आप ये निकाल के दो। हम्म? तो मेडिसिन, खासकर ऐसे केस में जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग सफरिंग हो या फिर रिकरिंग इश्यू, कई बार ऐसा आता है, पोलिप के केसेस हो जैसे, तो उसने 2-3 बार सर्जरी कराई है फिर आ रहा है आपके पास, तो उस केस में आपकी मेडिसिन में पोलिप कवर होना चाहिए। आप ऐसे पूरा मेंटल जनरल लेके ऐसी मेडिसिन दोगे जिसमें पोलिप है ही नहीं, तो इट may नॉट वर्क, और पेशेंट फिर वापस नहीं आएगा, फिर वो फर्स्ट एफोरिज्म का फुटनोट हो जाएगा,
कि आप थियोराइज कर रहे हो, नहीं मैं आपका डायनेमिक सफरिंग दूर कर रहा हूँ, आपका जाएगा पोलिप। अरे पर नहीं जाएगा भाई, तू पोलिप का मेडिसिन दे ना, समझते हो? ओके, लास्ट केस। अभी तक में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ये थोड़ा फास्ट जाने वाला है। टेल मी। हेलो, नहीं है? हेलो। हेलो हाँ जी। सर, डायरेक्ट 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? सर? इन एवरी केस यू स्टार्टेड विद 30 ना, इन लास्ट केस आल्सो 30 पोटेंसी है गिवन। हाँ हाँ, ओके। मैं डिफिकल्ट रहेगा मैं पोटेंसी पे अगर बोलने चाहूँ, ओके। क्योंकि वो पूरा अलग एक टॉपिक है। ओके, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं पोटेंसी का कैसा रहता है सीन। वी जनरली प्रैक्टिस द पोटेंसी, जो हम सीखते हैं, जो हमने देखा है हमारे सर्स को यूज करते हुए। ओके, हम वही मेथड फॉलो करते हैं जनरली। मैनी होम्योपैथ्स एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं पोटेंसी में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हनीमैन एक्सपेरिमेंट करते थे ना, हनीमैन ने कैसे सब ढूंढा। तो हमें एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करना पड़ेगा, पर हम करते नहीं है, सीखने की बात है। आपको समझाऊं, माई नेफ्यू इज अ डिफिकल्ट चाइल्ड, ट्यूबरक्यूलर पूरा, ठीक है। तो उसको मेडिसिन दिया था सैनिकुला 200 में, उसको उससे रिलीफ थोड़ा बहुत हुआ, पार्शियल। उसके बाद एक नया सिम्टम आया जो पहले मेरी सिस्टर ने मेंशन नहीं किया था, दैट ही इज डिनाइंग टू एवरीथिंग। कुछ भी बोलो, पूछो, करने को कहो, ही ऑलवेज सेज नो। ऐसा एक रूब्रिक है, नो सेज एवरीथिंग टू, ऐसा करके एक रूब्रिक है कुछ लंबा सा। उसमें आई कम टू दिस क्वेश्चन लेटर विश्वास। तो उसमें एक दो मेडिसिन है, एंड वन ऑफ द मेडिसिन इज ट्यूबरकुलिनम। सो आई गेव हिम ट्यूबरकुलिनम 1 ml। ओके, क्योंकि एंटी मायाजमेटिक हम जनरली 1 ml या हायर में देते हैं। ओके, या फिर इंटर करंट हो वो भी ऐसे ही देते हैं। तो इनिशियल 2-3 दिन उसको एग्रावेशन हुआ और देन ही सेटल डाउन। कुछ दिन ठीक रहे, फिर उसका वापस कॉल आया, माय सिस्टर कॉल्ड कि अभी उसको ना 4-5 दिन ठीक रहा, फिर वापस तकलीफ होने लगा, या एक हफ्ता ठीक रहा फिर वापस तकलीफ होने लगा। तो अभी मैं उसको क्या किया, इसका मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक, हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। जैसे प्रिडिक्टिव मेथड वाले बोलते हैं ना, होम्योपैथिक इज मैथमेटिक्स। तो अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज पोटेंसी एक्चुअली? बहुत सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज पोटेंसी? इट्स अ स्टिम्युलेशन, राइट? कितने इंटेंसिटी का स्टिम्युलेशन जा रहा है, दैट इज पोटेंसी। कितना फ्रीक्वेंट स्टिम्युलेशन जा रहा है, दैट इज रिपीटेशन। ओके, हेलो, से यस। यस सर। ओके, तो इस केस में मतलब क्या है, ट्यूबरकुलिनम काम तो कर रही है लेकिन सिम्टम्स वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या है, स्टिम्युलेशन चाहिए ना ज्यादा। हेलो, अभी क्रोनिक केस यस में, सर। हाँ, मैं उसको 2 दिन मेडिसिन दे के छोड़ दिया, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे ही वेट करूंगा, तो मतलब नहीं है ना, उसको चाहिए स्टिम्युलेशन ज्यादा। तो मैं क्या किया, उसको बोला कि यू गिव द मेडिसिन ऑन अल्टरनेट डेज, एवरी 2 days। हाँ, एक दिन दो, 2 दिन छोड़ो, फिर तीसरे दिन वापस दो। इज सेटल्ड नाउ, काफी टाइम तक। हाँ, 4-6 महीने हो गए, अभी वापस उसको तकलीफ हुआ, अभी उसका मेडिसिन कुछ चेंज हुआ है, अभी आई हैव गिवन हिम लाइकोपोडियम। ओके, तो पोटेंसी यस सर। में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक चीज, ये जज करके, ये अगेन कैंट्स के ऑब्जर्वेशन जैसा है कि आपको देखना पड़ेगा क्या कैसी नीड है, अकॉर्डिंगली यू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, चेंज मेडिसिन और गिव पोटेंसी और रिपीटेशन। दूसरा चीज पोटेंसी के बारे में, व्हाट आई डू जनरली इज अक्यूट्स में सेफ साइड पे यू कैन गिव 200 अक्यूट्स में। ओके, ज्यादा अक्यूट का इंटेंसिटी है या ज्यादा उसका रैपिड पेस है, सो यू गिव 1 ml और हायर। और उसका फ्रीक्वेंसी वैसे कर सकते हो
1 hourly, 2 hourly. I will also given in 15 minutes interval. ओके, अक्यूट की बात है, 200 सेफ पोटेंसी अक्यूट्स में देने के लिए, अग्रावेशन उतना नहीं रहता है। क्रॉनिक में आई ऑलरेडी सेड आई यूज द मेथड सेंसेशन मेथड, तो उसमें फिक्स है कि पेशेंट आपको सिर्फ पैथोलॉजी बोल रहा है, तो अगर सिर्फ पैथोलॉजी है तो आप क्या पोटेंसी देते हो उसको पेशेंट को। अगर पेशेंट बोलता है शुगर मेरे को ज्यादा आता है, आप क्या पोटेंसी दोगे आप, अगर कोई मेडिसिन देना है तो ज्यादा शुगर कंट्रोल करना है, क्या दोगे आप। या हाइपरटेंशन है, क्या दोगे। मदर टिंचर। मदर टिंचर, परफेक्ट। रीनल स्टोन है, क्या देंगे, सिर्फ पैथोलॉजी है, टिंचर देते हैं ना। तो जब सिर्फ पैथोलॉजी हो, आपके पास LSMC कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है, तो आप उतना पोटेंटाइज्ड मेडिसिन पे नहीं जाएंगे। पोटेंटाइज का मतलब क्या होता है, प्रूविंग जितना आप हायर पोटेंसी में करते हो, आपने अगर प्रूविंग कभी पढ़ी हो, जितना हायर पोटेंसी प्रूविंग करते हैं उतने सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो अगर कम सिम्टम मिल रहे हैं उसका मतलब क्या, ससेप्टेबिलिटी लो है, मतलब कि स्टिमुलेशन कम चाहिए, वैसा रॉ स्टिमुलेशन चाहिए, समझते हो। तो जैसे वो उस लेवल पे काम करने वाला मेडिसिन चाहिए तो पोटेंसी भी कम चाहिए। फिर जैसे अगर वो फिजिकल्स बोल रहा है, पर्टिकुलर्स मतलब हाँ LSMC, तो उसको 30 दे सकते हैं। इमोशंस बोल रहा है ज्यादा, इमोशन की बातें बहुत सारी कर रहा है, तो उसको 200 दे सकते हैं। डेल्यूजन पे है तो 1M दे सकते हैं। ऐसे एक एक स्टेज पे पोटेंसी रेज होता है, वो मेथड। अभी ये सारी इसने जो बात करी इस केस में, हमें पता है कि अपने को पूरा उसका ग्रुप सिम्टम सेंसेशन मिल गया कि ये 4th रो ही बोल रहा है, बट ये नॉर्मल ह्यूमन टॉक है ना, ये सारी सिचुएशन है, ये एबनॉर्मल कुछ नहीं बोल रहा है। हमने वहां से लिंक लगाया है कि ये उसका 4th रो का इश्यू है। उसके सारे इश्यूज क्या है, ये है, इचिंग है, ये है, ये नहीं हो रहा है लाइफ में, फैक्ट वाली बातें सारी। तो नेम, फैक्ट, इमोशन, डेल्यूजन ऐसे लेवल है। तो फैक्ट मतलब PQRS वाला, पर्टिकुलर वाला, तो 30 पोटेंसी आती है, समझे। यस सर। हाँ, तो इस बेस पे मैंने पोटेंसी सिलेक्ट किया है। अभी आगे के केस में अलग आएगा, उसमें ऐसा पोटेंसी नहीं है। अगेन नाउ, अभी ये क्रॉनिक केस नहीं है, अक्यूट है, बट ये दिखाने का ओनली रीजन ये है कि आपको मैं बताऊं कि केस टेकिंग मैं ऑलवेज ऐसे नहीं करता हूं। आप भी आगे जाके केस टेकिंग फटाफट फटाफट कैसे भी आपको मन करे, ऐसे मूड करे, ऐसे बना सकते हो। तो ये एकदम एडवांस वे ऑफ केस टेकिंग जो है वो दिखाने के लिए सिर्फ ये केस है। ओके, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, स्टोरी है, एंजॉय करो। 27-year-old फीमेल कॉल्ड मी वंस कि हमें नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो उसकी MD की फाइनल एग्जाम्स आने वाली थी, और उसको डिजर्टेशन जो बनाना रहता है उसके लिए टाइम बहुत ही कम था। तो उसने वही कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि मुझे इसका बहुत स्ट्रेस है और मेरे को नींद नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब है, क्या केस में इंपॉर्टेंट है। हेलो, क्या चीज के बारे में पूछोगे आप। चैट में नहीं लिख रहे ना। मेंटल सिम्टम्स। हाँ, पर क्या चीज के लिए, मेंटली तो केस है। हाँ, एक मिनट में एक क्वेश्चन आंसर कर दूं। हाउ टू कंसिडर अवर्जन इन होम्योपैथिक लैंग्वेज, एग्जांपल यू वाज सेइंग अवर्जन टू बैंगन या बिटर फूड, तो मोस्ट पेशेंट टेल्स। हाँ, तो मोस्ट पेशेंट बोलते हैं वैसा नहीं लेने का। उसमें इंटेंसिटी जज करने का, या वो आप वो तो एकदम इंटेंसिटी के साथ बोल रहा है क्या कि ये तो मुझे चलता ही नहीं है। हम्म, तो वो इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं लेने का। उसमें मैंने नहीं डाला था ना, वो प्लस वाली इंटेंसिटी नहीं थी। सेम वे, हाँ।
तो अभी इसमें समझो, आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, insomnia is one of the most difficult things to treat in homeopathy. मैंने नहीं बोला है, this is said by Dr. L.M. Khan. You must be knowing Dr. L.M. Khan, no? So he had said this in one of the webinars previously. So it's very difficult. अभी इसको स्ट्रेस क्या है, इंसोमनिया का रीजन क्या है, अंदर सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, हमें उसको ट्रीट करना है. हाँ एग्जैक्टली अभी उसको स्ट्रेस क्या है, अभी वो बोल क्या रही है कि मुझे डिसर्टेशन कंप्लीट करने का स्ट्रेस है. ओके बट क्या हुआ, मैं क्योंकि उस पर फोन पे बात कर रहा था ना उसके साथ, तो मुझे इसमें एनर्जी नहीं लगा कि नहीं ये स्ट्रेस हर एक को होता है, उतनी इंटेंसिटी का इसको स्ट्रेस नहीं है जितना ये रिएक्शन दिखा रही है. हाँ तो उसका फोकस कहीं और रहेगा. दिस आई जज्ड बाय माई सेल्फ, ऐसे ही मुझे लगा तो मैंने उसको पूछा. ओके तो मैं उसको बोला, सीधा बोल दिया, शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स. इसको सीधा बोल गया, नहीं ऐसे डिजर्टेशन के बारे में नहीं, और क्या स्ट्रेस है वो बता. हाँ अच्छा ये पूरा गुजराती में है, सो इफ यू नो गुजराती यू विल अंडरस्टैंड और आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी. तो उसको स्ट्रेस क्या, अच्छा ये मैंने नोट में डायरेक्टली, दिस इज फ्रॉम माय सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में एक ऐसा नोटपैड जैसा आता है जिसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो कुछ भी चीजें. तो केस इतना ही है, मैंने ऐसे ही करके लिखा है केस, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो उसने बोला कि वो शी वाज इन्वॉल्व विद सम गाय एंड वो उसको स्ट्रेस था कि ये शादी उसके साथ करनी नहीं करनी, क्योंकि वो लड़के को उसका आंसर चाहिए था. हाँ एक लड़का उसको पसंद था, वो इसके पास आंसर मांग रहा था, और घर पे बात अलग चल रही है शादी की, वो अलग प्रेशर है. हाँ तो मैं बोला अच्छा अभी ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है. तो उसने बोला कि अगर ऐसे ही घर वाले किसी को भी दिखाते हैं उसके साथ शादी कर ली तो ये तो लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, हाँ वो इन्वेस्टमेंट अगर वो ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, बोली हर्ट होगा, पेन होगा, मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी. कौन बोलता है ऐसा, मैं टूट जाऊंगी बिखर जाऊंगी, ये नॉन ह्यूमन वर्ड्स है, सबकॉन्शियस वर्ड्स है, समझते हो आप. और मैं टूट जाऊंगी बिखर जाऊंगी ऐसे पूरा इकट्ठा नहीं हो पाऊंगी, जिंदा लाश बन जाऊंगी, मेरे अंदर इमोशन नहीं रहेंगे, मैं गुम हो जाऊंगी, खुद से दूर हो जाऊंगी, खुद को ढूंढ नहीं पाऊंगी, हर जगह मुझे अंधेरा दिखता है, कहीं पे लाइट नहीं है. और बताओ इसके बारे में, ऐसे करके मैं उसको आगे ले जा रहा था डीप में, सबकॉन्शियस में. हाँ होप नहीं दिख रही है, कोई आवाज नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, कुछ उसमें क्या. तो फिर पूछा कि अगर हाँ ऐसा जगह है, आपको लाइट नहीं है, अंधेरा है, आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसा फील होता है अंदर. कोई फील नहीं आता है अंदर, सफोकेशन होता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी. अभी समझो उसने पहले भी बोला जिंदा लाश बन जाऊंगी, इमोशन नहीं रहेंगे, अभी वापस बोल रही है इमोशन नहीं है, सफोकेशन हो जाएगा. हाँ ओके और क्या होगा, सांस लेने के लिए मुझे खुले में बाहर जाने का मन करेगा, पर अचानक मुझे प्रेशर फील होता है. ये दिस वाज द टाइम कि हम फोन पे बात कर रहे हैं और उसको सडनली पैनिक अटैक आना स्टार्ट होता है. और मुझे नहीं पता कि अंधेरे की उस पार क्या है, मैं अंधेरे में हूँ, मेरे को उस पार क्या है नहीं पता है, और मैं फंस गई तो बाहर कैसे निकलूंगी. ओके ठीक है, इतना हो गया. अभी ये सेंसेशन है. ओके उसको सफोकेशन होता है, उसको बाहर निकलना है, अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, अंदर उसके अंदर जान नहीं है. हाँ उसको कुछ फील नहीं हो रहा है. ठीक है, नो फीलिंग नो इमोशन, जिंदा लाश, और सफोकेट होता है, उसको बाहर निकलना है. अच्छा तो इसका ऑपोजिट सेंसेशन क्या होता है, क्या फील होगा, बाहर फ्री होगा, होप लगेगा, मैं छूट जाऊंगी, सांस ले सकूंगी, मैं कहीं पे भाग जाऊंगी, तो मैं अंधेरे से बच के भाग सकती हूँ, नहीं तो अंदर में कैद हो जाऊंगी. ओके इतना केस है. क्या है ये, समझ आता है कुछ, क्या बोलता है ये पेशेंट. इतने में से मेडिसिन दे दिया है 1 एम में. हाँ ठीक हो गया सेम नाइट.
Any guess? Desire, Sorry, digitalis. desire for light. Light desire. I don't know. ये रूब्रिक नहीं है एक्चुअली. दिस इज अ सबकॉन्शियस डिजायर. ओके. और किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या? कुछ भी. Any of you do know the group symptoms या कुछ भी? Or do you read them? सर ग्रुप सिम्टम्स कहाँ से पढ़ सकते हैं, पता नहीं है. ओके. बहुत सारी बुक्स है. जैसे आप 4th ईयर में पढ़ते हो, जेडी पाटिल करके एक ऑथर है जिसकी बुक्स में है. ओके. हाँ, बाकी बहुत सारे ग्रुप सिम्टम्स आपको बुक्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे. गूगल पे काफी सारे मिल जाएंगे. बुक्स में यू कैन रीड फ्रॉम शॉल्टन्स बुक्स, होम्योपैथी एंड मिनरल्स, होम्योपैथी एंड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स बहुत लेंथी है. होम्योपैथी एंड मिनरल्स पढ़ सकते हो. ओके. देन प्लांट्स के ऊपर शंकरन का वर्क अच्छा है, इनसाइट इनटू प्लांट्स. मिनरल्स के ऊपर तो मैंने बोल दिया. एनिमल्स के ऊपर काफी सारी अलग अलग बुक्स है. जोशीस की है. फिर मैमल्स के ऊपर एक पूरी बुक है डॉक्टर मैसिमो मैंजिएलावरी की. पर वो ग्रुप सिम्टम नहीं है, वो इंडिविजुअल मैमल्स है. घनश्याम कलाटिया की बुक है एनिमल्स के ऊपर. ओके सर. ग्रुप सिम्टम की. और जो बहुत पुरानी बुक्स जैसे फेरिंगटन की बुक है क्लिनिकल मटीरिया मेडिका, उसमें ग्रुप सिम्टम्स काफी अच्छे से दिए गए हैं. E.A. फेरिंगटन, हाँ, यूजीन. E.A. फैरिंगटन. हाँ, सॉरी, अर्नेस्ट ए फेरिंगटन. और एक ऑटो लीसर करके राइटर थे पहले, जिसकी पूरी बुक है ग्रुप सिम्टम पे, पर वो मिनरल्स पे है शायद, सिर्फ मिनरल्स है. सिमिलरली एक रमेश जैन करके ऑथर है, उनकी भी एक मिनरल्स पे बुक है. ठीक है, तो ये सब कुछ है. अभी ये मैं आपको बता दूं, दिस इज कार्बन. ओके, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ कार्बन. कैसे कार्बन आता है सेकंड रो में. सेकंड रो मतलब वूम्ब स्टेज होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, कि जैसे बर्थ कैनाल में कैसे पास होता है मदर के अंदर से निकलते हुए. तो जैसे बोरेक्स आपको पता है, तो बोरेक्स में उसका डाउनवर्ड मोशन बाहर निकलने के लिए शुरू होता है अभी. तो इसलिए बोरेक्स को है फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन और वो क्लिंगीनेस. उसको वो जर्क फील होता है कि पांव तले जमीन खिसक रही है. समझते हो? हेलो, से यस. यस सर. ओके. Yes, sir. कार्बन किधर है पीरियोडिक टेबल में? बीच में, सिलिका के ऊपर. तो जो बीच में रहता है ना, उसको इधर का भी होता है, इधर का भी होता है. अंदर रहूं कि बाहर जाऊं? तो इसको क्या है, अंदर हूं तो मैं सफोकेट होता हूं, मर जाऊंगी. बाहर होंगी तो ऐसा होगा. दोनों साइड का बोल रही है. ठीक है. और यस सर. कार्बन जिधर रहता है ना, कार्बन का पिक्टोरियल स्टेट क्या होता है कि उसका सर इधर तक आ गया है अभी, वजाइनल ओपनिंग तक. ठीक है. नाइट्रोजन में जाके उसका सर बाहर आता है, नेक के अराउंड वो फंसा हुआ रहता है. तो इसलिए नाइट्रोजन का मेन सिम्टम क्या है? पैनिक और क्लोस्ट्रोफोबिया, डेंजर, फियर ऑफ डेंजर, कि मर जाऊंगा, मेरे को बाहर निकालो यहाँ से. घुटन होती है क्योंकि वो नेक के अराउंड फंसा है. कार्बन इधर होता है. तो इसने क्या बोला, मुझे नहीं पता है बाहर क्या है, क्योंकि उसका सर बाहर नहीं आया ना. हाँ. और अंदर क्या है? अंदर है वो. तो अंदर कैसा दिखेगा? पूरा अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है. बाहर लाइट है, क्योंकि बाहर निकलूंगी तो लाइट दिखेगा. सिंपल है. थोड़ा मजेदार है ना, स्टोरी है. और कार्बन का सिम्टम मेन क्या है? आपको क्या पता है सारी कार्बन मेडिसिन में क्या कॉमन होता है? कार्बोवेज, कार्बो एनिमलिस, ऑल दी अदर कार्बन्स. क्या होता है कार्बन? व्हाट इज कार्बन बेसिकली? पेट्रोल, डीजल, क्या है कार्बन? उसको क्या चाहिए? स्टिम्युलेशन. सिक्योरिटी. नहीं, क्या सिक्योरिटी? 4th रो में थोड़ी है.
स्टिम्युलेशन चाहिए उसको। पेट्रोल कैसे चालू होता है आपकी गाड़ी में? स्पार्क चाहिए ना उसको। हेलो, से यस। यस सर। हाँ, तो कार्बन बेसिकली डलनेस होता है ना, कार्बन में स्लोनेस होता है। कैलकेरिया का कैसा है? डलनेस, स्लगिशनेस। हाँ, वेनस स्टेसिस का मेडिसिन है ना कितना सारा उसमें। प्रोस्ट्रेशन होता है, डलनेस होता है, स्लोनेस होता है, कार्बन का मेन सिम्टम है। का क्या बोल रही है वो? लाश हूं मैं, कुछ एक्शन नहीं है अंदर, Yes, sir. है ना। स्टैग्नेशन ऑफ थॉट्स होता है। स्टैग्नेशन, एग्जैक्टली, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। तो अभी आपको कोई कार्बन ढूंढना है, ठीक है। मैं रेपर्टराइज किया, पूरे कॉमन सिम्टम उसके जो भी बोले उसने डाले। अभी ये कैसे कार्बन आ गई सारी? मैंने रेपर्टरी में फिर उसको लिमिट में डाला। मेरे को वही मेडिसिन देखनी है जिसमें सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ कार्बन मेडिसिन मुझे चाहिए। तो ये सारी आ गई। इसमें से कौन सी कार्बन देनी है? पहली आती है वो वाली नहीं। हाँ, ऐसा रेपर्टरी का कोई रूल नहीं है। ऐसी कार्बन जिसके मटीरिया में उसके सिम्टम मिले, ठीक है। हेलो, यस सर। उसका Yes, मेन sir. सिम्टम क्या है जो इसमें लिखा नहीं है? उसको कंफ्यूजन है। हम्म, कि घर में क्या बोलना, वो घर वाले के लड़के के साथ शादी करनी, कि वो मेरे को जो पसंद है उसके साथ बात चल रही है उसके साथ शादी करनी। वो शी इज इनडिसाइसिव, ठीक है। Yes, ग्रेफाइटिस sir. में लिखा है फर्स्ट लाइन, अनेबल टू डिसाइड। ओके, ग्रेट टेंडेंसी टू स्टार्ट, ये कार्बन का सिम्टम है, चौंक जाना। तो उसको दिया ग्रेफाइटिस 1 है। ओके, शी गॉट बेटर। रिपीटेडली दिया था उसको, 3-4 दिन दिया। शी गॉट कंप्लीटली बेटर, नॉट जस्ट हर स्लीप, उसको पीसीओडी भी है, उसके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए। So graphitis may be his, her constitutional medicine. She has not followed back after that. She is yet to follow up with me. But समझ रहे हो आप कैसे काम किया इसमें? पूरा मेंटल से। स्ट्रेस उसका क्या है? अगर मैं इसमें जाता तो इसमें शायद बोलती, शायद ना बोलती। मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रेसर क्या है? डिजर्टेशन का प्रेशर नहीं है उसको, पर चीज वही है, प्रेशर ही बन रहा है ना उसमें भी। उसके साथ टाइम लिमिट नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है जैसे कार्बन पे बनता है। अचानक प्रेशर, इधर भी बोली ना वो। तो कहीं पे भी उसका मेडिसिन जो रहेगा वही बोलेगी घूम फिर के। समझा कैसे किया? ये एडवांस चीज है। हाँ, ये जस्ट Yes. एक आइडिया के लिए थी। ओके, अभी और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो कि पूरा टाइमलाइन, एक ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, आप पहले क्या हुआ उस पे जाओ। चीफ कंप्लेन हो सके उतना एक्सप्लोर करो। उसमें पूरा जो पैथोलॉजी है वो कैसे आया है, अपने को क्या सिखाया गया है, कैंट ने, हनेमैन ने क्या बोला, पूरी बैड बॉडी में सब घूम फिर के फिर एक पैथोलॉजी निकल के आता है कोई जगह पे। तो इट जस्ट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होल डिजीज विद इन। तो अगर इतना पोर्शन, बॉर्निंग हुसैन ने क्या बोला था, व्हाट इज सिम्टम टोटल, सॉरी कंप्लीट सिम्टम या सिम्टम टोटालिटी। कंप्लीट सिम्टम का इंपॉर्टेंस क्या दिया था बॉर्निंग हुसैन ने? एक कंप्लीट सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप केस क्योर कर सकते हैं। आपको एक सिम्टम को अंडरस्टैंड करना है इन इट्स एंटायरिटी। तो अगर आप चीफ कंप्लेन को एकदम ठीक से समझ लेते हो, एक्सप्लोर कर लेते हो, तो आपको वहीं से मेडिसिन मिल सकती है बिना कुछ केस में उतरे। इतना सिंपल हो सकता है। फिर क्या पूछना है, ये डिजीज आपको जो हो रहा है क्रोनिक में इतने सालों से, उसका आपके ऊपर असर क्या होता है? हाँ, क्या चेंज पड़ता है आपके माइंड पे, रूटीन पे, बॉडी पे, लाइफस्टाइल में, घर में, काम पे। और उसके अलावा स्पॉन्टेनियसली आपके क्वेश्चन के बीच में या उसके बाद वो क्या मेंशन करता है। आप कुछ और पूछ रहे हो, वो कुछ और बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये पूछ रहा हूँ तो वो और कहाँ जा रहा है भाई पेशेंट, वो क्या बोल रहा है देखो, वो इंपॉर्टेंट रहेगा शायद। तो गो देयर, आस्क अबाउट इट।
फिर ये हमने देख लिया मोस्ट स्ट्रेसफुल और मोस्ट जॉयस, मैंने कैसे लिखा है वापस, मोस्ट समझो वैसे ही पूछना है उसको। फिर ये सब एक्सप्लोर करो, घर का माहौल कैसा है, काम का कैसा है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था शायद कि एक पेशेंट था स्टोनशियम कार्प वाला जिसको माइग्रेन में मैंने दिया था ना, तो पूरा उसका वर्क का मैंने उसको स्टडी करके बोला था कि हाँ यू नीड स्टोनशियम कार्प, ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ वैसे है। फिर लोगों के नेचर कैसे है, कैसी बनती है उसकी लोगों के साथ, ये पूछो। ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार आपने बोला ना कि पेशेंट बोलता नहीं है, तो रेपो कैसे बनेगा, पंचायत करो ऐसी, आजू बाजू का फालतू चीजें उसको पूछो, कहीं से बोलेगा उसको लगेगा इसको इंटरेस्ट है डॉक्टर को, तो सुना हो, और कोई सुनता नहीं है। पूछो फिर पास के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, आगे हमने पूछा ना ये पेशेंट को फ्यूचर कैसा चाहिए बोलो, इंटरेस्ट, हॉबीज पूछा, ड्रीम पूछा। हाँ, फिर ये भी पूछ सकते हो आपका लाइफ में क्या ड्रीम है। कई बार इफ द पेशेंट इज नॉट टेलिंग अबाउट ड्रीम, तो ऐसे बोल सकते हो पेशेंट को, ओके अगर आपको कोई सपना बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सपना एक बना के बताओ ना। बच्चों को कैसे स्टोरी बना के बताते हैं, वैसे एक सपना बना के बताओ मुझे। पेशेंट जो इमेजिन करेगा वो अपनी सबकॉन्शियस से आता है, फिर उसमें अपने को समझना है कि वो इमेजिन करके बोल रहा है कि लॉजिक लगा के बोल रहा है, दैट वी हैव टू जज। ओके, आस्क अबाउट फियर्स, चाइल्डहुड नेचर, फ्रेंड्स, ये सब हो गया। प्रेजेंट नेचर वो भी हमने पूछ लिया। ओके, एंकरेज करना है, ऑप्शन देने हैं। आपने बोला ना एक ने कभी बीच में कि आपके सामने 4 चीजें पड़ी है, उसमें से क्या लोगे। उसमें ये नहीं करना है, पर नाम नहीं बोलने हाँ चीज के, नहीं तो उसमें से चूज करेगा कि यही 4 ऑप्शन है, इसमें से केबीसी के जैसे एबीसीडी में से चूज करना है। आपके सामने सब कुछ रखा है तो क्या लोगे, वैसे करके पूछ सकते हो बेटर। ओके, तो बेसिकली ये हमने बहुत सारी चीजें लर्न करी है, बहुत सारी चीजें हमें अनलर्न करके रीलर्न करनी है। ओके, तो ये बहुत ही फेवरेट वन ऑफ माय कोर्स है। इट टुक मी 4 years टू पेंट लाइक राफेल, बट अ लाइफ टाइम टू पेंट लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि वो नेचुरल एनर्जी वो बहुत डिफिकल्ट है, जो इजी लगता है। हमने एकदम पहले जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने बात करी थी, होम्योपैथी इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। हमने ज्यादा फैंसी कुछ नहीं करना है, बट वही डिफिकल्ट है। तो हम फैंसी ना करें अपने हिसाब से, उसको हमें अनलर्न करना है, और जितना और कुछ मिल सकता है वो रीलर्न और लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें ज्यादातर कॉमन रहेगा, रिपीटेटिव होगा मे बी। आस्क एवरी पॉसिबल एसोसिएटेड फिनोमिना और सिम्टम, कंकॉमिटेंट जो भी रह सकता है, ओरिजिन, एलिमेंट्स, स्पेशली इन अक्यूट्स, अनकॉमन जो भी है। जैसे हमने उसमें देखा कि पहली चीज उसने क्या बोली कि उसको अनफॉर्चुनेट फील होता है। फिर सारी ऐसी आपको 5-10 चीजें मिलेंगी, तो फिर उसको कनेक्ट होगा, उसका पोर्ट्रेट बनेगा। फिर सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना, हमने लास्ट टाइम देखा था एक वो सिम्टम, आई थिंक हमने इम्पेटिगो वाला केस देखा था ना एक, जिसमें हमने एंटीम टाट दिया था, तो मैंने रूब्रिक में डाला था ना इम्पेटिगो विथ इरिटेबिलिटी करके सर्च मारा था हमने सॉफ्टवेयर में। जैसे सिमिलरली इसमें हमने रेपर्टाइज तो किया, पर हमें पता है कि कार्बन, तो हम नैरो डाउन करेंगे कि कार्बन वाली ही दिखाओ सिर्फ। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि नॉर्मल रेपर्टाइज किया, मेडिसिन जो 5-10 आती है उसमें से दे दिया, हर बार ऐसे काम नहीं चलेगा। 10 में से 5 बार 7 बार चल जाए, 3 बार नहीं चलेगा, तो 3 बार ऐसा कुछ नया करना पड़ेगा। और उसके साथ उसका रेफरेंस जो है, कई बार रेफरेंस बहुत फालतू होते हैं, रिलायबल नहीं होते बेसिकली। क्योंकि अभी न्यूअर रेपर्टरीज हम जो यूज करते हैं मोस्टली हम कंप्लीट या सिंथेसिस ये सब यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा है कोई भी ऑथर अगर मुझे मन करता है तो मैं अपने कुछ 5-10 केस ऐसे ही लिख के उनको भेजूंगा, वो लोग ऐड कर देंगे ये रूब्रिक में ये मेडिसिन, नए नए रूब्रिक्स भी डाल देंगे मेरे नाम से। तो उतना रिलायबल नहीं रहता है, तो ऑलवेज गो फॉर गुड रिसोर्सेस। और ये फोटो इसलिए है क्योंकि हमें ये बड़े इंसान जैसा बनना है। आपको बनना नहीं है, हम एक्चुअली है, पर आपको कभी आपने पढ़ा हो, सुना हो, तो लाइफ में 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुश होते हैं। कौन होते हैं?
ये जोक है शायद, जो बच्चे रहते हैं और पागल रहते हैं, दो लोग, तो लाइफ जीने की जो रीत रहती है वो बच्चों से सीखनी रहती है। तो जैसे आप अगर किसी पपी को लेके जा रहे हो बाहर, अपना नेचर कैसे रहता है, या बच्चे को लेके जा रहे हो, तो हम ऐसा करेंगे ना, नहीं यार तू मैं जैसे ले जा रहा हूँ वैसा चल ना, तो नहीं, अपने को वो कैसे जा रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो उसको देख के सीखना समझना है, जैसे बच्चे को देख के। तो बच्चा पेशेंट है, वो अपने को जहाँ जो एरिया में ले जा रहा है वो अपने आप से बोलेगा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फोकस करो। अगर और पेशेंट इतने अच्छे होते हैं, जैसे वो ये केस अपने को देखा कॉस्टिकम वाला, वो रिपीटेडली घूम फिर के बोल रहा है मेरे ये इशू है, मेरे ये इशू है, मेरा इशू है, बार बार बोल रहा है। तो अगर हम केस टेकिंग में गलती कर भी रहे हैं तो पेशेंट विल गिव अस प्लेंटी ऑफ चांसेस, मेनी टाइम्स, कई बार नहीं भी देता, नसीब अब। ओके, सो दैट्स इट। टेल मी अगर कोई क्वेश्चंस हो इसको रिलेटेड। एजेड पेशेंट वाज डिफिकल्ट टू लिसन एंड आंसर प्रॉपर्ली, जितना हो सके उतना करो, नहीं तो फैमिली मेंबर्स से लो। रास्ता तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ऑब्जर्व करो उनको, काफी सारे ऑप्शंस है ऐसे। और टेल मी व्हाट एल्स। आई थिंक यू ऑल कैन अनम्यूट एंड आस्क डायरेक्टली टू, चैट करने का झंझट चला जाए। Advice for students, I'm still a student, don't stop learning. वो I can tell you, so I'll tell you briefly about my journey maybe. You all are lucky you are learning this at an early age. I was I graduated from a very okay college, हमें ठीक ठाक सिखाया था, and we never saw any patient, never. जितने वहाँ ओपीडी में देखे थे, पेरिफेरल ओपीडी में आते थे और काफ़ी थेरापेटिक और बेकार प्रिस्क्रिप्शंस होते थे. So once in my internship, I took a case for my principal, and I accidentally asked and received a symptom that the patient had fear of snakes, and it was like an achievement. और हम विलेज में पढ़ते थे, हाँ, तो उसमें fear of snakes is common, उतना फैंसी नहीं था, बट प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड मी अ लॉट. तो यू अंडरस्टैंड कि क्या किस स्टैंडर्ड से हम आए हैं. देन आई वेंट टू पीजी एमडी, and I knew that I don't know much. So what did I do? I went to the principal and I asked her कि मैम मुझे OPD चाहिए, I want to practice. And supportively she gave me an OPD, peripheral OPD, which was running good. And I experimented different rubrics, medicines. I learned there practicing with patients. Okay, many almost 70 to 90% of my prescriptions were wrong. बहुत गलत तरीके से मैंने मेडिसिन दी है. Okay, there I, during my PG period, I went to 4 to 5 homeopaths, different 4 to 5 homeopaths to learn. और मेरे साथ जो हमारे PG में थे, few of those guys were also practicing since years, 14-15 years, and very good practitioners. Dr. Manan and I met there, so I learned a lot from him, and also from those 4-5 doctors there. Then I came back to my hometown Surat. I joined 2-3 doctors here again for many months. I learned one of the doctors who is practicing mainly sensation method. He also uses Dr. Sarkar's approach. He also uses Dr. Praful Vijayakar's approach, Sehgal method. He does everything. Then I went to a specific doctor who is practicing predictive homeopathy only. I went to him for 2-3 months.
Then I went to another homeopath or so. Then I started doing practice in a trust clinic, and I had also started my job in an homeopathic college while that time. And parallelly, I started my own practice at my father's clinic from my home. And I do have my clinic now. I see regular patients. I still read a lot. I still go to my failed cases. I repeatedly read the cases and see कि और क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, और क्या होगा इसमें जो मैं चूक रहा हूँ, और कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, और क्या मेडिसिन निकल के आ सकती है. I discuss with my friends, my seniors. I mail to my professors. I also been to the Other Song Academy for 6 months in Mumbai in between. So I'm also in contact with those of my gurus there. So never stop learning, never stop discussing. Failures will teach you much more than your success. अगर आप कुछ सही कर रहे हो, आपको 4 सिम्टम आते हैं, उस पर मेडिसिन काम कर रही है, तो उसमें से आप कुछ नया नहीं सीखने वाले. जैसे वो बोलते हैं ना, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन यू स्पीक ओनली यू डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, व्हेन यू लिसन यू लर्न मोर. सिमिलरली जब फेलियर आता है, मेडिसिन काम नहीं करती, आप केस लेने में गड़बड़ करते हो, टोटालिटी में, रेपर्ट्रेशन में, प्रिस्क्रिप्शन में, तभी जाके दिमाग में वो क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे सुधारेंगे इसको, तो उसका सॉल्यूशन आएगा, या ढूंढने को कोशिश करेंगे. नहीं तो गलती करते जा रहे हैं, फिर वो 35 साल के बाद लिखेंगे कहीं पे, एक आध दो बार सेमिनार लेने जाएंगे, 35 years ऑफ एक्सपीरियंस. क्या एक्सपीरियंस, क्या सीखे, ये सीखना है. I'm hoping to one day give a seminar on my failed cases someday. Many schools, many approaches, how one can choose which school to follow. Many homeopaths are not willing to share their knowledge, how one can study. Okay. See, there are 2 options here. As I said, मैंने हर जगह जाके सीखने को ट्राई किया है. Why? Because I understood my concepts of organ and homeopathy very well. कि बेसिक ट्रूथ क्या है ये है. अभी अगर मैं जाके सेंसेशन मेथड वाले के पास सीख रहा हूँ, या प्रिडिक्टिव वाले के पास, या ऑल्सो आई हैव बीन टू अ डॉक्टर हु यूजेस फाटक एंड बोरिक अप्रोच प्लेनली, और उसके साथ पेटेंट भी देते हैं, पॉलीफार्मेसी करते हैं, थेराप्यूटिक देते हैं, टिक्चर देते हैं, तो मैं वो भी सीखा जाके कि वो कैसे कर रहे हैं. वो सारा लेके, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ कैसा होता है, वन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है ना. हनीमैन ने क्या बोला है, यूनिवर्सल लॉ है. तो जो ऑर्गेनन में लिखा है उसके साथ वो कितना रिजेंबल कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको समझता हूँ कि कैसे कर रहा है. अगर कहीं नहीं कर रहा तो ऐसे नहीं कि मैं उसको इग्नोर मार दूंगा, नहीं. आई ट्राई, अगर अभी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, बाद में समझ में आएगा. तो ऐसे करते करते मैं जितनी अलग अलग मेथड भी देखा ना, तो कैसा है कि वो हाथी वाला स्टोरी कैसा है कि ये तो उसके कान को डिस्क्राइब कर रहा है, ये तो उसकी पूंछ को डिस्क्राइब कर रहा है, बट है पूरा हाथी. तो अलग अलग मेथड ये है. आपको यहाँ से आपके घर से लेके स्टेशन तक जाना है तो आपको 4-5 रास्ते मिलेंगे. आप कौन सा रास्ता ले रहे हो वो आपका अप्रोच है. उसको नाम अलग अलग दिए है, ये सेंसेशन है, ये सैगल है, ये क्लासिकल कोलकाता वाला है, ये एलेंस कीनोट वाला बेसिक कीनोट अप्रोच है, ऐसा है. है ऑलमोस्ट सारी एक ही चीज, आप कैसे कर रहे हो वो अलग अलग है. तो एक ये है कि आप ऐसी अलग अलग जगह जाके कर सकते हो. उसका एक बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है, कंफ्यूजन बढ़ सकता है अगर आपका क्लैरिटी बेसिक का नहीं है. दूसरा, आप किसी एक होम्योपैथ को, अच्छे जो गाइड हो आपको, उनके साथ शांति से बैठ कर डिस्कस करो आपका दिमाग कैसे चलता है, आप कैसे समझते हो इश्यूज को. वो मेथड आप जाने को, लर्न करने को जा सकते हो. जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको हमने साथ में कभी शंकरन की एक बहुत बेसिक किताब पढ़नी शुरू करी थी, उसको कंसेप्ट पढ़ने पे ही डाइजेस्ट नहीं हुए. तो मैं उसको बोल दिया, भाई तू इसमें मत पढ़ना. उसका सिंपल क्लिनिकल क्लासिकल वो बुक्स भी ऐसी पढ़ता था, वो ह्यूजिस की
फार्माकोडायनेमिक्स, जैसे एलोपैथी की मेडिसिन का कैसा रहता है फार्मेक, वैसे वो होम्योपैथी का पढ़ता था, तो उसको बोल रखा था और वही वही करता है वो, बोरिक और क्लार्क पे प्रैक्टिस करता है, सिंपल क्लिनिकल प्रिस्क्राइबर। ओके, तो आप ये एक और चीज कर सकते हो, आप ये सारे जितने मेथड्स है उसके जो प्रैक्टिशनर्स के केसेस होते हैं या उनकी जो बुक्स होती है वो स्टडी करो, उनको रीड करो, वो कॉन्सेप्ट्स आपको डाइजेस्ट होते हैं क्या, डाइजेस्ट होना जरूरी है। मैंने एक बार सहगल का सेमिनार किया था, मुझे 5 केस के रूब्रिक समझ में आए कि कैसे लिए और 5 के नहीं आए, तो मैं सोचा नहीं ये अभी अपने लिए नहीं है, बाद में करेंगे कभी समझ में आएगा। तो अभी मैं सहगल यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ जितना समझ आता है। बाकी कई बार ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन यार ऐसे क्यों लिया, मैं तो ऐसे नहीं समझता, तो वैसे मत लो। हम वो चीज बिल्कुल नहीं करने वाले जो हमें समझ ना आती हो, कैसे करेंगे, होल हार्टेडली या उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले तो समझ आना चाहिए, फिर सीखने की बात है। तो कई बार होता है कि ये लोग 6-6 महीने के 1-1 साल के ऐसे कोर्सेज करने चले जाते हैं लोग, बट फिर वापस आके ऐसा होता है कि यार ये नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हमसे हो नहीं पा रहा है। तो हो क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कहीं ना कहीं नहीं हुआ, अपना फ्रीक्वेंसी कुछ अलग चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो सारी उसके बुक्स आप बेसिक बेसिक पढ़ सकते हो, उसके केसेस डिफरेंट पढ़ सकते हो। अभी तो जर्नल्स में इतना सारा अच्छे से आता है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा डिटेल में ही केस होता है। वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं तो फिर वो मेथड सीखने में समझने में ट्राई कर सकते हैं। और आपको कैसा इंटरेस्ट है उसके ऊपर, मेरे को बहुत पहले से पता है, मेरे को आई यूज टू लव दिस आइडिया ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड सोर्स ऑफ द मेडिसिन, कि कोई पेशेंट ऐसे करता है तो ऐसे हो सकता है। तो अभी मेरे पेशेंट बोलते हैं, मेरे कार्बन का केस हो तो ऐसे प्रेशर बताता है वो, नाइट्रोजन का कार्बन का केस हो तो। मेरा अभी एक मॉलस का केस था, उसने शेल बनाया था ड्राइंग करके, तो बोलते हैं पेशेंट आपको मजा कैसे आता है, वो भी एक चीज है। आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दिन में 500 केस देखने हैं, मैं दिन में 5 देखूं पर 5 में मुझे मजा आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, वो एक अलग चीज है। और कि आपको कैसे करना है काम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीथिंग एल्स? So how frequently mother tincture can we use? डेली। मदर टिंचर तो रिपीटेशन में ही देते हैं ना, Okay. डेली 2 to 3 टाइम्स देते हैं। आई डोंट यूज इट, आई हैवंट यूज्ड इट सिंस लॉन्ग, ऑलमोस्ट नेवर, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ स्टोन्स मे बी, और ऐसी पैथोलॉजीज, क्योंकि कई सारी बार इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज होती है ना जिसमें क्रिस्टलाइज होकर ऐसा कुछ पैथोलॉजी फॉर्म हो गई है, स्ट्रक्चरल चेंज, तो उसमें कई बार अपनी डायनेमिक मेडिसिन से ऐसा होता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है पर पैथोलॉजी नहीं जाती है, तो क्या करोगे वो एंड प्रोडक्ट के लिए, दैट टाइम यू हैव टू यूज द टिंचर्स और एनी सच मेडिसिन। जैसे डेसिमल स्केल में काफी सारे टैबलेट फॉर्म्स में मेडिसिन अवेलेबल है, 3x या ऐसे, यू कैन यूज दैट। आई डोंट जनरली यूज, बट ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं। Okay, sir. एनीथिंग एल्स? यू कैन कांटेक्ट मी देन, बाद में कहीं कभी कुछ सवाल कंफ्यूजन हो, टेल मी। ओके, वी कॉल इट अ नाइट। हेलो। Yes, sir. ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। Good night, sir. Thank you.